welcome you all for today's 16th morning CME of our GP Association, and I will request you all to stand up for doctor's prayer. सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् न त्वहं कामये राज्यं न स्वर्गं न पुनर्भवं कामये दुःखताप्तानां प्राणिनां आर्तनाशनम्. Good morning, everyone. So the topic we are about to explore is extremely relevant and very thought-provoking. Common do's and don'ts in medical practice and medico-legal purview. As medical professionals, we not only carry the responsibility of clinical excellence, but we are also expected to maintain legal prudence in every step we take, whether it is documentation, consent, communication, or treatment protocols. Being aware of medico-legal aspects can safeguard us and our patients in many critical situations. To throw light on this significant subject, we are privileged to have with us Dr. D.K. Bhagwani, a highly respected pediatrician and vast clinical experience and very deep understanding of the medico-legal framework. His practical approach and clarity of thoughts have helped many young practitioners navigate complex legal scenarios in medical practice. I now warmly invite Dr. D.K. Bhagwani to come forward and share his valuable insights with us. Please give him a big round of applause. Once a doctor is in trouble, a lot of doctors have to run to save their colleagues' position in the society, in the media, and the administration, in the court of law. Keeping in mind the safety of the patient, which should be a primary concern of the doctor, and often we are in trouble only when the safety of the patient is compromised. If patient is fine, nobody says कि यार तुम्हारे इलाज में कोई कमी थी. So once that blame goes into the court of law or say into the police system, then obviously it is a nightmare for a doctor. Let it be a trauma caused by social system or a administrative system or a legal system, or it can be a trauma from the media. डेली अखबार में अगर आपके नाम या अस्पताल के साथ कुछ छपता है तो आपको बुरा लगता है, and you may react it or you may not react it, but you feel it awkward कि यार ये ऐसा क्यों हो रहा है जबकि मैंने सब कुछ पेशेंट के एड्रेस में किया था. So coming to the presentation, the first slide says ignorantia juris non excusae, means if any doctor says कि हमको पता नहीं था, you cannot stand in any court of law. Patient says that you know everything, and that is why हमको बोला जाता है आप पृथ्वी पर दूसरे भगवान हैं, but ये अलग बात है कि हमको दूसरा भगवान बना दिया गया है, यानी सेकंड क्लास का भगवान बना दिया गया है. We are blamed for every death, and death is a doctor fault until unless proved otherwise. Now it has become like that. Even the complications are now termed as it is your fault, which are mentioned in the textbook. So it is very necessary to explain the patient about the things they can happen in the treatment. Now what are the simple do's and don'ts in the medical profession? As we did in SPM, here I have divided it into 4 parts. Primary level of prevention against litigation, that is definitely we should do everything to avoidance of a lawsuit. Things should not go into the court of law. Secondary level of prevention, aversion from being negligent. एक बार मामला कोर्ट में चला गया तो हम खुद को कैसे लॉ में, सिस्टम में, लीगल सिस्टम में अपने आप को नेग्लिजेंट प्रूव होने से बचाएं. क्वाटरनरी लेवल सेफ्टी और मिनिमम लायबिलिटी, अगर हमारा नेग्लिजेंस प्रूव हो चुका है तो हम उससे अपने आप को कैसे बचाएं. एक टारगेट होता है कि हमारा इम्प्रिजनमेंट ना हो, एक टारगेट होता है हमारा अर्लीस्ट बेल हो, एक टारगेट होता है कि अगर ये सब नहीं हुआ तो मेरे ऊपर जो कैपिटल पनिशमेंट आ रहा है वो मिनिमम हो. हाउ टू प्रिवेंट सच मेडिको लीगल मिसहैप्स. द कोर ऑफ प्रिवेंशन इज बेस्ड ऑन कम्युनिकेशन, डॉक्यूमेंटेशन ऑफ कम्युनिकेशन एंड कंसेंट डायनेमिक्स. So we have to communicate with the patient, we have to document our communication, and we have to take the consent in a dynamic way. There is like ऐसा नहीं है कि हमने एक कंसेंट ले ली और हम मरीज का 15 दिन इलाज किए जा रहे हैं.
there should be a level of communication, and then communication should be documented between a doctor and the patient or the immediate caregiver. Like I am a pediatrician, I cannot communicate my patient, so I have to communicate the immediate caregiver, let it be parents or attendants or the immediate relatives who have brought the patient to OPD. Now, essence of communication is careful and attentive listening to patients' complaints and concerns. In this scenario, it is very important to have an eye-to-eye contact with the patient. That builds a rapport of a doctor of a patient. And if, like in my part, pediatrician, or in a case like a cardiologist is there, often patient is not able to communicate, the immediate caregivers, or a comatose patient, immediate caregivers, you have to talk to them because you have to take the history from them. So you have to build a rapport while taking the history. It is not only the medical facts are important. While we are taking the medical facts, we should communicate in such a way so that patient develops a rapport. Yes, this doctor is caring about me. If we are negligent in history taking, that is the first foul play has started. That is the first step. उस समय वो आपसे कुछ नहीं कहेगा क्योंकि उसकी इमीडिएट नीड है. वो कहेगा कि नहीं आप मेरा काम करो. लेकिन अगर आपके प्रति उसके साथ रेपो नहीं बना तो वहाँ पे वो एक संदेह की या एक अविश्वास की कड़ी शुरू हो जाती है और वो फिर आगे बढ़ती जाती है. क्योंकि अभी तो इमीडिएट प्रॉब्लम लेके आया है, हम जैसे मैनेज करेंगे प्रॉब्लम्स हो सकती हैं और हो सकता है हमारे ट्रीटमेंट से पेशेंट इम्प्रूव हो. कंसेंट हम जो लेते हैं तो कंसेंट में क्या होना चाहिए, पेशेंट का डिजीज़ प्रोफाइल क्या है. हम एम्पिरिकल डायग्नोसिस बना सकते हैं, एक वर्किंग डायग्नोसिस बना सकते हैं, क्लिनिकल डायग्नोसिस बना सकते हैं. मीन्स अगर पेशेंट को रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस है तो हम ये तो लिख सकते हैं रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस कॉज वेरी. Cause can be a metabolic, cause can be a pulmonary, cause can be a cardiac. That will be determined later on. But respiratory distress का मैनेजमेंट क्या है वो तो हम तय करेंगे पेशेंट का प्रोफाइल देख के. लेकिन रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस है ये तो हम लिखेंगे. और रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में हम सिंपल मैनेजमेंट क्या स्टार्ट करें अपनी केस शीट में, पेशेंट के एयरवे को लिखें, पेशेंट के सेचुरेशन को लिखें, पेशेंट के वाइटल्स को लिखें, सेचुरेशन, ब्लड प्रेशर, रेस्पिरेटरी रेट. हमने रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस लिख दिया और वहाँ रेस्पिरेटरी रेट मेंशन नहीं है तो हमारा अपना ही डॉक्यूमेंटेशन हमारे अगेंस्ट स्टैंड करेगा. पेशेंट 40 साल का है, उसका रेस्पिरेटरी रेट 18 है और मैंने लिख दिया रेस्पिरेटरी रेट 18. तो अब हम कैसे कहेंगे कि डिस्ट्रेस है. तो हमारे बगल में एक चीज़ लिखी होनी चाहिए, लेबर्ड ब्रीदिंग. क्योंकि डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में हमको नॉर्मल रेट ऑफ ब्रीदिंग मिल सकता है, पेशेंट की ब्रीदिंग लेबर्ड होगी. हमको ये लिखना होगा कि एक्सेसरी मसल्स एट वर्क. क्योंकि पेशेंट का रेस्पिरेटरी रेट 12 हो सकता है, वो गैस्पिंग में भी हो सकता है. तो आपने तो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस लिख दिया या रेस्पिरेटरी कंप्रोमाइज लिख दिया. बट अगर आपने नहीं मेंशन किया कि रेस्पिरेटरी रेट 12 है और पेशेंट गैस्पिंग है या शैलो ब्रीदिंग है, then your own documentation will stand against you because in court patient will not be available in that same scenario. Your documents will be stating what you have done. So once you are recording vital parameters, you should be careful that when you are attending the patient, especially in IPDs, so you should be careful in such life-threatening situation where patient's life is at risk. Now it encompasses disease, management, diagnosis, treatment, procedural details, risk reward, हम किस प्रोसीजर से क्या बेनिफिट पा सकते हैं, कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकते हैं, आउटकम के लिमिटेशंस क्या है. एक 80 साल का आदमी है, उसमें मैं स्टेंट डाल रहा हूँ तो क्या रिजल्ट निकलेगा. एक 80 साल के आदमी में मैं बाईपास कर रहा हूँ तो क्या रिजल्ट निकलेगा. एक 80 साल के आदमी का कोमेटोज कंडीशन है, वो निकल के आएगा तो उसका GCS कैसा हो सकता है, लाइफ नॉर्मल होगी कि नियर नॉर्मल होगी. ये सब चीज़ें हमको बतानी पड़ती हैं. लाइक मैं पीडियाट्रिशियन हूँ, या बर्थ एस्फिक्सिया का पेशेंट एडमिट किया तो हम हमेशा मेंशन करें न्यूरो डेवलपमेंट आउटकम एक्सप्लेन्ड. वो पेशेंट जब 2.5 महीने, 6 महीने, 8 महीने का होगा तभी हमको पता लग पाता है कि ये खड़ा नहीं हो पा रहा है, चल नहीं पा रहा है. हम उसको एडवांस में नहीं बोल सकते, बट इट शुड बी मैंशनड इन माई डॉक्यूमेंट कि न्यूरो डेवलपमेंट आउटकम्स डिस्कस्ड. तो ये एक लाइन लिख देना आपको बहुत सी चीज़ों से सेव करता है. अल्टरनेटिव मैनेजमेंट ऑप्शंस क्या हैं. लाइक अगर हम किसी पेशेंट को रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस को मैनेज कर रहे हैं, कॉज पल्मोनरी है, तो पल्मोनरी में हम उसको बाईपैप दे रहे हैं या सीपैप दे रहे हैं या वेंटिलेटर पे डाल रहे हैं, उसके क्या प्रोस एंड कॉन्स है, इंक्लूडिंग देयर एक्सपेंसेस भी हमको बताने चाहिए. या अप्रॉक्सीमेट एक्सपेंसेस आपके ये आ सकते हैं, इस एक्सपेंस में ये चीज़ें कवर होती हैं. ज़रूरी नहीं कि ये चीज़ हम उसको एडमिशन के समय ही बोलें.
क्योंकि एडमिशन के समय हमारी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस पेशेंट के साथ एम्पैथी रखना, उसको सपोर्ट करना, और उसके बाद जब वो उसकी इमीडिएट प्रॉब्लम मैनेज हो गई तो उसके अटेंडेंट भी हमारी बात सुनने को थोड़ा सा प्रिपेयर्ड होते हैं। हम लोग तो अगर उससे इमरजेंसी में ये भी पूछेंगे झटका कब से आ रहा है तो कहेगा यार पहले दवा तो दो झटका रोकने का। तो दे आर नॉट रेडी टू रिस्पॉन्ड टू योर क्वेश्चंस। एंड वो टेक्स्ट बुक सेज कि 1 भी मिनट का जो कन्वर्जन होता है तो पेरेंट्स के लिए वो 1 मिनट एक नहीं कई साल के बराबर होता है। तो हमारा इमरजेंसी में हमारा उससे रेपो बनना बहुत ज़रूरी होता है। अगर हम नहीं बना पा रहे हैं तो हमें विड्रॉ करना चाहिए, एग्रेसिवली घुसना नहीं चाहिए, क्योंकि वो जो फॉल्स रेपो बना है या जो गड़बड़ रेपो बना है वो अल्टीमेटली हमारे लिए प्रॉब्लम्स बढ़ाता जाता है। Our consent must be dynamic and in understandable language of the patient, preferably written and signed by patient or immediate caregiver. अब यहाँ पे एक इशू आता है कि हमने उसे हिंदी में बता दिया हमारी कंसेंट इंग्लिश में है, दैट विल नॉट वर्क। और प्रेफरेबली हमने जब इमरजेंसी मैनेज कर दिया हमारे कंसेंट का पेपर हमको हैंड ओवर कर देना चाहिए, उसकी एक फ़ोटोकॉपी, कि आप हमारी केस शीट पे एक पेपर पे लिख के साइन कर दो। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। इमीडिएटली हम इसको नहीं कर सकते हैं क्योंकि पेशेंट कहता है डॉक्टर साहब हम तो गए, इन्होंने साइन करा दिया, हमने कुछ पढ़ा ही नहीं, हमारे मरीज़ की जान खतरे में थी, मरता क्या ना करता। कोर्ट कहता है आपने प्रिंटेड कंसेंट ले रखी है तो मरीज़ तो आया है सीरियस, तो भाई छापे वो पे साइन कर दिया उसने। तो वो स्टैंड नहीं करती कई बार, और ये डिपेंड करता है उस जुडिशियल ऑफिसर पे कि आपकी उस बात को वो कितना माने। तो वंस योर पेशेंट हैज़ गॉट मैनेज्ड, आप उसको शाम को अगले दिन कह दो भाई ये हमारा प्रोटोकॉल है, करना पड़ेगा। अब इसमें प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, हम हॉस्पिटल के लोग एक सिंपल ब्लैंकेट प्रोटोकॉल नहीं फॉलो करते। मींस पेशेंट मेरे पास आया, उसको लगा कि यार ये तो बहुत कुछ पूछ कह रहा है, चलो हम डॉक्टर धवन को दिखाते हैं। अब डॉक्टर धवन ने भी उससे वही प्रक्रिया बोल दी तो उसको लगेगा कि यार वहाँ भी यही होता था। तो वी आर नॉट फॉलोइंग अ यूनिक और यूनिफॉर्म प्रोटोकॉल अपने हॉस्पिटल्स में। तो वो चीज़ पेशेंट को फिर लगता है, और इसका एक रीज़न हमारी प्रोफेशनल कंपटीशन भी है, और कहीं ना कहीं हमारे अर्निंग का भी पर्सपेक्टिव होता है कि यार मेरे सेटअप के एक्सपेंसेस हैं, अगर हम हर मरीज़ को भगा देंगे तो हमारे पास आएगा क्या। तो वो प्रेशर भी बिल्डअप होता है, उसको भी हम काउंटर कर सकते हैं अपनी यूनिफॉर्म वे ऑफ प्रैक्टिस से। जब हम उसको कंसेंट लें तो उसमें हम मेथड्स ऑफ मैनेजमेंट और रिलेटेड इश्यूज़ को जरूर डिस्कस करें। पेशेंट सेरेब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट का है तो हमें बताना पड़ेगा कि न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट होगा। पेशेंट डायबिटीज़ का है, हम उसको मेटाबॉलिक एसिडोसिस में डील कर रहे हैं तो हमको बताना होगा कि हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है। मीन्स इमीडिएट कॉम्प्लिकेशंस शुड बी कन्वेड। अगर हम अपेंडिक्स को ऑपरेट कर रहे हैं तो भाई लीक के चांसेस हैं, पेरिटोनाइटिस हो सकती है। हमने एनास्टोमोसिस किया है तो लीक हो सकता है, क्योंकि ये उसके फर्स्ट नोन कॉम्प्लिकेशंस हैं। हमने लैब कोली किया है तो सिस्टिक डक्ट खुल सकती है। तो ये चीज़ें हमको उसको बतानी पड़ेंगी। लैब कोली में हमको गॉलब्लैडर एडहेयर्ड मिला तो हमको लिखना पड़ेगा गॉलब्लैडर वाज टू मच एडहेयर्ड। हम नहीं लिखेंगे तो हाउ कोर्ट विल सी कि आपका गॉलब्लैडर एडहेयर्ड था। तो ये चीज़ें लिखनी इम्पॉर्टेंट होती हैं ताकि वो आपके इस चीज़ को बचा सकें कि आपने एक एडहेयर्ड गॉलब्लैडर निकाला तो उसमें सिस्टिक डक्ट के खुलने के चांसेस थोड़े ज़्यादा हो सकते हैं। ओपीडी लेवल की जो कंसेंट है इम्प्लाइड है। हम ये मान के चलते हैं पेशेंट हमको दिखाने आया है तो उसके मन में है कि वो हमसे कंसल्टेशन ले और हमारा काम है ये करना, तो हम कर रहे हैं। बट हम चाहें तो उसकी भी एक प्रोफार्मा बना सकते हैं, अपने ओपीडी के पेपर के पीछे लिख करके पेशेंट से साइन करवा सकते हैं। लेकिन इंट्रा जो हमारे पेशेंट एडमिट हो रहे हैं आईपीडी में, उनका जो प्रोसीजर कर रहे हैं उसकी कंसेंट बहुत ही एक्सप्लिसिट और क्लियर डॉक्यूमेंटेशन के साथ होनी चाहिए। कोई भी प्रेस्क्रिप्शन या कोई भी ऑनलाइन कंसल्टेशन लीगल डोमेन के बाहर नहीं है। आप ये कहें कि मैं रोटरी क्लब के साथ गया था, लॉयंस क्लब के साथ गया था, या जीपी के साथ गया था, आईएमए के साथ गया था, मैंने फ्री में कंसल्टेशन दिया, यू कैन नॉट हैव एन एक्सक्यूज़ कि भाई हमने फ्री में दिया तो हमारे ऊपर लागू नहीं होता। जो गवर्नमेंट में डॉक्टर बैठा है उसको सैलरी मिल रही है, पर्चे की कीमत 1 रुपये है, 1 रुपया सरकार लेती है, उसके ऊपर भी मेडिको लीगल इश्यूज़ वैसे ही गवर्न होते हैं जैसे हमारे आपके ऊपर। सो वी शुड नॉट हैव अ कन्फ्यूज़न कि हम सरकारी में हैं या हम फ्री में कैंप लगाए या हम घर के बाहर बैठे थे, फलाने मरीज़ को देख के हमने दवा लिख दी तो आप बाहर हो गए, या आपने अपने ओपीडी के पर्चे पे लिख दिया नॉट फॉर मेडिको लीगल यूज़। इन सब का कोई मतलब नहीं है। योर एवरी डॉक्यूमेंट इज़ अ लीगल डॉक्यूमेंट, लेट इट बी अ पैथोलॉजी रिपोर्ट, लेट इट बी अ CT रिपोर्ट,
let it be your prescription, let it be your discharge card. आपके जो ट्रस्ट हैं, इमोशंस हैं, ये पूरी तरह वैल्यूएबल होते हैं पेशेंट से रेपो बनाने में, बट कोर्ट ऑफ लॉ में कोई काम नहीं आएगा। आपने मरीज को अपना ब्लड भी डोनेट कर दिया, ठीक है, आपने मनुष्य के नाते दूसरे मनुष्य की मदद की, लेकिन इलाज गड़बड़ किया तो कोई आपको छोड़ने वाला नहीं है। सो इट इज़ ऑलवेज बेटर टू हैव अ प्रोफेशनल रेपो, बट यू शुड नॉट बी पर्सनली कनेक्टेड टू द पेशेंट। दैट इम्पार्ट्स अ फ्यूचर सेफ्टी। पेशेंट आता है, कहता है डॉक्टर साहब आप तो मेरे अपने हैं, मैं इतने सालों से जानता हूँ। सो एवरी पेशेंट इज़ अ पोटेंशियल लिटिगेंट। और देखिए, विश्वास में ही विष का वास है और उसी में विश्वासघात भी होता है। तो टेक एवरी पेशेंट एज अ लिटिगेंट बिकॉज योर जॉब इज़ टू ट्रीट हिम एंड सेव हिम। और आपका डॉक्यूमेंटेशन, कम्युनिकेशन, कंसेंट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। व्हाट इज डूज, दैट इज़ रीजनेबल लेवल ऑफ ड्यूटी टुवर्ड्स पेशेंट। हम पीडियाट्रिशियन हैं तो मैं एक जीरियाट्रिक पेशेंट को अटेंड नहीं करूँगा, उसको फीवर है, मैं उसको एक कैलपॉल दे दूँगा, बोलूँगा भाई साहब एक फिजिशियन को दिखा लो आप, ये मेरा डोमेन नहीं है। मैं अगर इस काम को सिद्धार्थनगर की एक पीएससी पे कर रहा हूँ तो मैं उसको कुछ एंटीबायोटिक भी दे सकता हूँ, कुछ इन्वेस्टिगेशन भी करा सकता हूँ, बट ये एम्स जैसी संस्था में एप्लीकेबल नहीं है। वो गलती से पीडियाट्रिक ओपीडी में चला भी गया तो उसको डाइवर्ट कर देना, भाई मेरे पास मत आओ। तो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, मेरा डोमेन पीडियाट्रिक्स का है तो मैं सर्जरी नहीं करूँगा। ठीक है, मेरे पास MBBS की डिग्री है, बट आई एम नॉट ट्रेंड फॉर द सर्जरी। उसके लिए शहर में और एक्सपर्टाइज हैं। वाई शुड आई ट्रीट अ सर्जरी? सो इफ़ आई फाउंड अ सर्जिकल कॉज बच्चे में तो मैं उसको रिफ़र कर दूंगा। कोमा में पेशेंट आया, वो पहुंचा कार्डियोलॉजिस्ट के पास, पेशेंट को डाउट है कि इसको कार्डियक प्रॉब्लम हो गई है। उन्होंने देखा, बोला नहीं न्यूरोलॉजी की है, तो उनको न्यूरोलॉजी के पास रेफ़र कर देना है, न्यूरोलॉजिस्ट को बुला के दिखा लेना है। हम अपने पास से न्यूरोलॉजी का ट्रीटमेंट उसको नहीं दे सकते, सिंपली इसलिए कि हमने MD भी किया है। अब नाउ आई एम ए DM कार्डियोलॉजिस्ट, तो हैव टू वर्क फॉर कार्डियोलॉजी। मैं DM गैस्ट्रोएंटरोलॉजी हूँ, तो फिर मैं बैठ के न्यूरोलॉजी की प्रैक्टिस नहीं करूँगा, दो आई एम एन MD। नाउ दिस इज़ अ डिस्प्यूटेबल थिंग। एक फिजिशियन कह सकता है कि हमको ट्रेनिंग मिली है, बट नो यू आर स्पेशलिस्ट फॉर अ पर्टिकुलर थिंग। तो ये उसी तरह की बात है कि एक जज बैठा है तो वो DM का काम नहीं करेगा। डॉक्टर को लग सकता है ये कि भाई मैंने किया है, पीडियाट्रिशियन को लग सकता है कि मैं MBBS हूँ, मुझको भी बैचलर ऑफ सर्जरी मिला हुआ है, तो मैं हर्निया हाइड्रोसील कर सकता हूँ। लेकिन अब कितना हम कर पाएंगे हमको भी नहीं पता है, तो हम ऐसी जगह क्यों पड़ें, पेशेंट की लाइफ को रिस्क में क्यों रखें? तो हमें उससे बचना चाहिए। डोंट्स, दैट इज़ फेलियर टू एग्जीक्यूट एज पर द प्रिवेंट नॉर्म्स। पेशेंट डायबिटीज़ का हमने ब्लड शुगर रिकॉर्ड ही नहीं किया, पेशेंट हाइपरटेंशन का है, हमने उसका BP रिकॉर्ड ही नहीं किया, पेशेंट कन्वर्जन लेके आया, हमने उसके कन्वर्जन को नहीं रिकॉर्ड किया कि कब कितनी देर कैसे आया। तो ये मेरे लेवल पे कमी है, OPD में ही कमी हो गई, इंडोर की तो दूर की बात है। जब हम ऐसा नहीं करते हैं, दैट फॉल्स इन एक्ट्स ऑफ कमीशन और एक्ट्स ऑफ ओमिशन। ये बहुत चर्चा में आता है कि एक्ट्स ऑफ ओमिशन क्या है और एक्ट्स ऑफ कमीशन क्या है। अब आप यूँ समझिए कि हमने पेट में सीधा छोड़ दी, हम भूल गए, तो हमने वो नहीं किया जो हमें करना चाहिए था, और हमने किसी का दायां पैर काटना था, बायां काट दिया। तो बायां पैर काट दिया तो ये फिर एक्ट ऑफ कमीशन हो गया, हम भूल गए तो ओमिशन हो गया। तो ये जब ऐसी घटनाएं होती हैं, अभी गोरखपुर में एक केस है, एक हॉस्पिटल में सर्जरी हुई है, उसको राइट नेफ्रेक्टमी होनी थी और लेफ्ट कर दी गई है। अब उसकी एक किडनी डिजीज है और आपने दूसरी नॉर्मल निकाल दी। तो नाउ यू कैन नॉट बी प्रिवेंटेड इन द कोर्ट ऑफ लॉ। अब इसमें तो नेग्लिजेंस प्रूवन है, आपने सर्जरी की, पेट में से एक स्पंज और एक सीजर निकल गया, तो इट इज़ ऑलवेज बेटर टू रिट्रैक्ट एंड डील द सिचुएशन आउट ऑफ द कोर्ट ऑफ द लॉ, कि भैया उसको कुछ लेके दे के उसके ग्रीवांसेस को मीट आउट करके उसके एक्सपेंसेस का खर्चा बियर करके उसको सॉरी बोल के हम नमस्ते कर लें, या उसके जो कॉन्टेक्ट्स हैं उसको मैनेज करके कि भाई एक मिस्टेक हुई है, मैंने जानबूझ के नहीं किया, लेकिन हाँ प्रोफेशनल मिस्टेक तो है। तो बाई एनी लेवल आप बेंट अपॉन होकर के, झुक करके उस काम को ख़त्म करिए, क्योंकि कोर्ट ऑफ लॉ में जाएंगे तो नो यू विल बी हेल्ड पनिशेबल। एक छोटा सा इंसिडेंस बता रहा हूँ, एक अपने ही कलीग का। उन्होंने एक पेशेंट को एडमिट किया, सीजर करके डिस्चार्ज किया, डायग्नोसिस लिखा था सेप्टिसीमिया। पेशेंट के पास इंश्योरेंस था, पेशेंट ने अपने सारे खर्चे को इंश्योरेंस कंपनी में क्लेम कर दिया, इंश्योरेंस ने उसके क्लेम को रिजेक्ट कर दिया, बिकॉज वहाँ पर भी एक डॉक्टर बैठा है जिसको कंपनी पे कर रही है अपनी इंटरेस्ट बचाने के लिए। तो उस डॉक्टर ने उसके क्लेम को रिजेक्ट कर दिया कि देयर इज़ नो एविडेंस ऑफ सेप्टिसीमिया, उसके काउंट्स नॉर्मल हैं, सब कुछ नॉर्मल है। तो अब सारे डॉक्यूमेंट सबमिट हो चुके हैं, यू कैन नॉट रिवर्ट बैक फ्रॉम द डॉक्यूमेंटेशन। उस पेशेंट के सारे इन्वेस्टिगेशन मेरे पास आए तो उसमें सिर्फ हाइपोकैल्सीमिया था उसको, जिसकी वजह से उसको सीजर आए।
तो डॉक्टर ने बोला मैं क्या करूं? मैंने कहा उसका कंसर्न क्या है? कंसर्न यह है कि उसका 35,000 का बिल बना है और उसको चाहता है कि वो वापस मिल जाए। मैंने कहा भाई मेरी समझदारी ये है कि इसको दे दो, बिकॉज यू हैव डॉक्यूमेंटेड, नाउ यू कैन नॉट रिट्रैक्ट फ्रॉम इट। और आपकी प्रॉब्लम को, आपकी कमी को एक मेडिकल प्रैक्टिशनर ने आपको मेल करके बता दिया है। तो इट इज़ ऑलवेज बेटर टू सेटल सच थिंग्स आउट ऑफ द कोर्ट। तो उस पेशेंट का कंसर्न ये नहीं था कि मेरे बच्चे का नुकसान हो गया। पेशेंट ठीक है, डायग्नोसिस का इशू है, पैसे का इशू है, तो लॉस ऑफ लाइफ नहीं हुआ, आपने उसको मैनेज कर दिया, तो इजीली वो मैनेज हो गया, उन्होंने उसको पे कर दिया, पेशेंट खुशी खुशी चला गया, भाई ठीक है हमारा हो गया, बात खत्म। तो जो ये चीज़ें हैं इसको लीगल टर्म में कहते हैं रेस इप्सा लोकिटर। नो नेग्लिजेंस नीड नॉट टू बी प्रूव्ड, इट इज़ प्रूव्ड ऑलरेडी बाय योर एक्ट ऑफ कमीशन और ओमिशन। अब आपको कोर्ट में खड़े होकर ये नहीं कह सकते कि मेरी गलती नहीं है, आप गलत हैं, ये प्रूवन है। हाउ टू सेव योर सेल्फ, व्हाट आर द कॉमन डूज वी शुड फॉलो। हमारा रजिस्ट्रेशन होना चाहिए एज पर द लॉ, हमारे क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट का डिटेल होना चाहिए एज पर लॉ, पेशेंट रिलेटेड डिटेल्स में हिस्ट्री, एग्जामिनेशन, इसका डॉक्यूमेंटेशन। एक कार्डियोलॉजिस्ट पेशेंट को डील कर रहा है तो उसके लिए बेसिक पैरामीटर है कि पेशेंट का पल्स रेट, हार्ट रेट, दोनों में डिफरेंस हो सकता है, और उसका बीपी जरूर लिख दे। मैं पीडियाट्रिशियन हूँ, न्यूबॉर्न में हम बीपी नहीं नापते हैं, हम लोग लिख देते हैं कैपिलरी रिफिल टाइम लेस देन 3 सेकेंड्स, तो उसका हीमोडायनेमिक स्टेटस स्टेबल हो गया। सो इट इज़ एज पर द ब्रांच। सर्जन है, उसने ओपीडी में देखा, बीपी ले लिया, पेशेंट के वाइटल ले लिए, लेकिन अगर उसको ऑपरेट करना है तो फिजिकल फिटनेस चाहिए। उसके हिसाब से पेशेंट बिल्कुल ठीक है, लेकिन फिजिकल फिटनेस नहीं लिया तो लैक ऑफ सर्विस है। प्रॉब्लम हुई तो उसको फेस करना पड़ेगा, निकल गया कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया, मरीज के पैसे बचेंगे, आपकी समस्या बढ़ेगी। सो इट इज़ ऑलवेज बेटर टू इन्वॉल्व इंटरडिसिप्लिनरी प्रोफेशनल कलीग्स। ऐसा नहीं करना चाहिए कि हम ये चीज़ें जानते हैं या ये हम कर लेंगे। पेशेंट के लिए भी एटमोस्ट इम्पॉर्टेंस उसकी सेफ्टी है, आपके लिए भी एटमोस्ट इम्पॉर्टेंस पेशेंट की सेफ्टी है, और साथ में यू हैव टू सेव योर स्किन। अगर आप कल मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं होंगे, मीन्स आपके ऊपर एक लिटिगेशन पड़ा है, तो यू वोंट बी फीलिंग हैप्पी, तो आप कैसे ओपीडी करेंगे, कैसे काम करेंगे। तो आपको अपने स्वास्थ्य के लिए भी ज़रूरी है कि आप अपने कलीग को इन्वॉल्व करिए, और पेशेंट का उससे सेटिस्फेक्शन बढ़ता है कि डॉक्टर ने देखा, इनको ये भी लगा तो इन्होंने इस डॉक्टर को भी बुला के दिखा दिया। उससे कभी आपकी प्रॉब्लम नहीं बढ़ती है, हमेशा आपका सेफ्टी प्रोफाइल बढ़ता है, और वह कलीग भविष्य में अगर कोई परेशान भगवान न करे खड़ी हो तो आपकी हेल्प के लिए भी खड़ा रहता है कि नहीं यार उस केस को तो मैंने भी देखा था, बॉस ने मुझे बुलाया था, या उसने मुझे बुलाया था तो मुझे जाना पड़ेगा। अगर हम सब कुछ अपने से करते रहेंगे तो इश्यू आता है। ओपीडी लेवल की जो कंसेंट है इम्प्लाइड है, हम लोगों ने पहले ही कहा, प्रोफॉर्मा बढ़ा सकते हैं। आईपीडी में एक्सप्लिसिट क्लियर होना चाहिए, डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर्ली डिटेल में होना चाहिए। क्या क्या हमें और करना चाहिए जब पेशेंट हमारे हॉस्पिटल में आ गया। हमको जब भी पेशेंट को हॉस्पिटलाइजेशन के लिए बोलना है तो डेट और टाइम लिखना है। हमने ओपीडी में उसको पिछले संडे को देखा था, आज सैटरडे में आया, तो सैटरडे में मैंने उसको बोला भर्ती हो जाओ, तो मैंने आज की डेट लिखी नहीं, और वो अगले सैटरडे तक घूमता रहा। तो अब ये मेरी भी कमी मानी जाएगी, आपने कब एडवाइस किया लिखा ही नहीं है। तो जो क्रिटिकल एडवाइजेज हैं कि आप कब इन्वेस्टिगेशन कराओ, कब आपको एडमिट होना है, ये सब डेट के साथ मेंशन होना चाहिए, प्रेफरेबली विद टाइम। एक पेशेंट एक पीडियाट्रिशियन के पास गया, उसको पेन एब्डोमेन था, पीडियाट्रिशियन ने देखा, उसको एक एंटी स्पाज्मोटिक एडवाइस किया और एग्जामिन किया, तो उनको डायग्नोसिस अपेंडिक्स की लगी, उन्होंने क्वेरी अपेंडिसाइटिस लिखा और उसको बोला पीडियाट्रिक सर्जन को दिखा लो। अल्ट्रासाउंड भी कराया उसका, अल्ट्रासाउंड में लिख के आ गया, उन्होंने रेफर कर दिया, भाई ये मेरा डोमेन नहीं है। वो पीडियाट्रिक सर्जन के पास नहीं गया कि ऑपरेट कराने के लिए बोलेगा, वो दूसरे पीडियाट्रिशियन पे गया अगले दिन, उसने भी उसको वही बोला। फिर वो पीडियाट्रिक सर्जन के पास गया, उसने कहा एडमिशन हो जाओ, सर्जरी करनी पड़ेगी, उनके पास नहीं गया। फिर तीसरे पीडियाट्रिशियन के पास गया अगले दिन, उसके बाद तीसरे पीडियाट्रिशियन के पास गया, तो उसने कहा देखो इसकी अपेंडिक्स फट चुकी है, बहुत इसकी मामला गड़बड़ है, एडमिट होना पड़ेगा तुरंत। तो उसी पीडियाट्रिक सर्जन ने उसको उसके सेंटर पे ऑपरेट किया। अब वो पेशेंट सीएमओ ऑफिस में कंप्लेन कर दिया कि प्राइमरी पीडियाट्रिशियन मैं हूं, तो मैंने लैक ऑफ सर्विस किया है। तो उस पीडियाट्रिशियन का पेपर ही उसको सेव किया।
जब मेडिको लीगल बोर्ड बैठा सीएमओ ऑफिस में, सिंपली कि भाई डॉक्टर साहब ने देखा है, उन्होंने तो सिर्फ एक साइक्लोपाम लिखा और आपको बोला है आप जांच करा लो, आपने क्यों नहीं कराई? आप अगले दिन गए, अगले दिन भी आपको उन्होंने बोल दिया पीडियाट्रिक सर्जन के पास जाओ, आप नहीं गए। फिर आप दूसरे तीसरे पीडियाट्रिशियन, तो आपका ट्रस्ट डॉक्टर पे था ही नहीं, तो मेडिको लीगल बोर्ड में वो मामला ख़त्म हो गया। तो ये सब चीज़ें उसने अपने आप को बचाया तो अपने पेपर से बचाया। अगर पेपर पे नहीं लिखा होता, वर्बली बोल दिया होता कि ऐसा है, मेरा केस नहीं है, तुम पीडियाट्रिक सर्जन के पास जाओ, तो सिस्टम में सीएमओ बोर्ड भले हमको छोड़ दे, बट कोर्ट तो कहेगा आपने लिखा क्यों नहीं कि आप पीडियाट्रिक सर्जन के पास जाओ जब आपने अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट देख ली। तो यहाँ पे हमको उसको डॉक्यूमेंट करना चाहिए। अब रिपोर्ट की भी डॉक्यूमेंटेशन का तरीका बनाना पड़ेगा आपको, और बनाना चाहिए। हमारा ओपीडी का पर्चा है, उसके पीछे मेंशन कर देता हूँ मैं, जैसे कोई पेशेंट डॉक्टर धवन की रिपोर्ट लेके आया तो मैं लिख दूंगा धवंस पैथोलॉजी, फ़ोन नंबर ये, डेट इतना, टाइम है मेरे पास तो मैं लिख देता हूँ हीमोग्लोबिन इतना कम था, टीएलसी इतनी थी, पी इतना था। रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन, सारा नहीं लिखना है। यहाँ प्लेटलेट कम है तो प्लेटलेट को लिख दिया, उसके बियॉन्ड जाने का ज़रूरत नहीं है। पीछे मैंने रिपोर्ट लिखी हुई है। इवन हम लोग को ये तक फॉलो करना चाहिए कि पेशेंट 5 फिजिशियन को दिखा के 6ठे बार में मेरे पास आया है, तो हम कई बार इसको डॉक्यूमेंट ही नहीं करते हैं कि वो 5 फिजिशियन को दिखा के आया है। हमें अपने ओपीडी पर्चे के पीछे उस क्लिनिक या उस डॉक्टर के नाम के साथ फ़ोन नंबर लिख करके लिख देना चाहिए। पेशेंट का ये बहुत बड़ा प्ली होता है, मैं तो बिल्कुल ठीक था, हम तो इनके यहाँ भर्ती हो गए और उन्होंने हमको मार दिया। तो आपने जो 6 पर्चे पीछे नोट किए हैं वो दिखेगा कि साहब इन्होंने 6 डॉक्टर को दिखाया था इस डेट में, झूठ बोल रहा है। तो ये आपको सेव करता है, एक सिंपल सा तरीका है और ये बहुत अच्छा है। हमारे एक पीडियाट्रिक कलीग के साथ हुआ, उसने यही प्ली दी, तो हम लोगों ने अपनी पीडियाट्रिक फ्रेटर्निटी में सारे डॉक्टर से बात की, तो पता लगा हाँ उसने 3 जगह और दिखाया है। तो ये बताया गया मेडिकल बोर्ड में, तब वो पेशेंट खुला कि हाँ हमने 3 जगह दिखाया था, तो मामला वहीं ख़त्म हो गया। तो देन आई केम टू नो कि देखो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, करनी चाहिए। सो योर ओपीडी पेपर इज़ ऑल्सो अ लीगल डॉक्यूमेंट। आपने जो लिखा है उसको कोर्ट नहीं काटेगा, आपने जो नहीं लिखा है वो कोर्ट सुनेगा नहीं। तो अगेन द इम्पोर्टेंस कम्स टू योर डॉक्यूमेंटेशन। अब जब हम ऑपरेटिव ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं या पेशेंट को इंडोर में लेते हैं, तो फिजिकल, मेडिकल या एनेस्थेटिक फिटनेस एज पर द नीड ऑफ द पेशेंट हमें लेना पड़ेगा। कॉमन मिस्टेक यहाँ क्या होती है, हम ऑपरेट करने जाते हैं, कोगुलेशन प्रोफाइल पे ध्यान नहीं देते हैं, पेशेंट का बीटी, सीटी, पीटी आईएनआर नहीं कराते हैं, उसकी पीछे की ब्लीडिंग की हिस्ट्री लेते नहीं हैं, और इंट्रा ऑपरेटिव ब्लीडिंग हुई और जिसके नाते पेशेंट को कोई नेगेटिव इवेंट हुआ तो हमारे पास कोई एक्सक्यूज़ नहीं है। नाउ दैट कम्स इनटू द एक्ट ऑफ ओमिशन। आपने क्यों नहीं ब्लीडिंग प्रोफाइल चेक किया? आप पेशेंट को ऑपरेट करने जा रहे हो, आप स्कैल्पेल लगाओगे, ब्लीडिंग होगी, तो आपने नहीं चेक किया, तो ये आपका एक्ट ऑफ कमीशन है। अगर उसका वकील समझदार है तो आपको फंसा सकता है, आप कहीं से बच नहीं सकते हो। यहाँ पे इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। मैं सर्जन हूँ, मैंने कह दिया भाई राजेंद्र सर ने देखा था, एनेस्थीसिया की फिटनेस थी। एनेस्थीसिया वाला बोलेगा यार मैं वाइटल देखूंगा, मैं ब्लीडिंग प्रोफाइल थोड़ा देखूंगा, क्योंकि जब कोर्ट में आदमी लड़ता है तो खुद को बचाता है, उसका एम अपनी स्किन को सेव करने का होता है। ये बात हम खुल के व्यक्त नहीं कर पाते हैं, लेकिन टारगेट यही होता है कि यार किसी तरह मैं बच जाऊँ। सो वी शुड हैव अ गुड रेपो विद आवर कलीग्स ऑल्सो, और हमारा एक सेट प्रोफाइल होना चाहिए कि ये हम करेंगे, इसके बिना ऑपरेट नहीं करेंगे। वायरल मार्कर से बिना कोई सर्जरी नहीं होती है। HIV 1, 2, HCV, HBsAg हम सब करा रहे हैं हर सर्जिकल पेशेंट में, या ICU में एडमिट कर रहे हैं तो इंडोर में करा रहे हैं, बट ब्लीडिंग प्रोफाइल सबका नहीं होता है, तो वहाँ पे हम कम हैं। पेशेंट का हीमोग्लोबिन 7 है तो ब्लड के बारे में हमको उससे लिखवा के साइन करवा के ले लेना है। आपने ब्लड का फॉर्म दिया, उस पर टाइम और डेट लिखा होता है। आप किसी भी ब्लड बैंक का फॉर्म लोगे उस पर लिखा होता है, आप उसकी एक कॉपी अपनी केस शीट में रखो, पेशेंट को दे दिया, पेशेंट से साइन करा लो। पेशेंट ये भी कहेगा हमको दिया ही नहीं इन्होंने। ये सब काम हमें खुद नहीं करने, अपने स्टाफ को ट्रेन करना है, क्योंकि हमारे पास इतना समय नहीं होगा कि ये सारे काम हम खुद करें। सैजनवा CSC में एक सर्जन ने एक पेशेंट को ऑपरेट किया और यही प्ली दी गई कोर्ट में। गोरखनाथ से उसका ब्लड बैंक आया था,
ब्लड बैंक से हमको उसका डुप्लीकेट फॉर्म, मतलब जो उसके फॉर्म का रखा हुआ था उसकी फ़ोटोकॉपी करा करके भेजनी पड़ी। देन ही वॉज सेव्ड कि हमने यहाँ ब्लड मंगाया था। तो पेशेंट अगर कुछ गलत कह रहा है और आपने उसको कोर्ट ऑफ लॉ में प्रूव किया तो आप सेफ हो। इसका मतलब कि वो मेलाफाइड इंटेंशन से आपको फंसा रहा है, उससे भी आपको आपका डॉक्यूमेंटेशन ही बचाएगा। पेशेंट का जो भी इन्वेस्टिगेशन है, या तो हम अपनी फाइल में नोट करें, एक उसका पन्ना बनाएं डेट वाइज, इन्वेस्टिगेशन वाइज, या फिर उसकी रिपोर्ट्स फोटोकॉपी करा के फाइल का पार्ट बनाएं। जाते टाइम वो ओरिजिनल सारे लेके जाएगा। वो तो ये भी ब्लेम लगा देते हैं कि इन्होंने सारे मेरे पर्चे रख लिए, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ब्लड की जांच सब रख ली। उसको उसका वकील समझाता है तुमको यही बोलना है, वो यही बोलता है। तो उसका एक डॉक्यूमेंटेशन हमारे पास होना चाहिए। ओपीडी में हम उसकी फाइल नहीं बनाते हैं, पर्चा बनाते हैं। ओपीडी के पर्चे के पीछे लिख दीजिए, फाइल है तो फाइल में उसका पार्ट बनाइए। अगर वो 5 जगह ट्रीटमेंट लिया है तो 5 पर्चे की फोटोकॉपी करा के अपनी फाइल में रख दीजिए। इट डज नॉट टेक एनी टाइम। दिन में 3 बजे 4 बजे ओपीडी खत्म होती है, आपका स्टाफ फ्री है, कर दो। 1 महीने में आपका स्टाफ सीख जाता है, अपना काम खुद करने लगता है। और रात में एक बार अपनी फाइल को जरूर देख लीजिए कंप्लीट है कि नहीं, क्योंकि सिर्फ पेशेंट को हमने देख लिया तो फाइल हमने नहीं देखी है, तो उससे कोई मतलब नहीं है। मे डिनाई अनऑथेंटिकेटेड इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स। आज की डेट में ये भी बहुत होता है कि पैथोलॉजी की रिपोर्ट आ गई, नीचे पैथोलॉजिस्ट का साइन, अता पता कुछ नहीं है। वी शुड डिनाई सच रिपोर्ट्स कि देखो इसमें डॉक्टर का नाम नहीं है, मैं इस रिपोर्ट को एक्सेप्ट नहीं करूँगा। मेंशन कर देना चाहिए ये रिपोर्ट है, हम इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। नहीं भी मेंशन करें तो हमने अपनी ओर से फ्रेश एडवाइस कर देना चाहिए कि आप जो सीबीसी करा के ले आओ, इसमें काउंट्स 58,000 लिखी हुई है, पेशेंट ठीक ठाक है, खा पी रहा है, 58,000 क्यों होगी, लिवर स्प्लीन है नहीं, मेलिग्नेंसी सोच नहीं रहे हैं, तो भाई इसको आप दोबारा करा लो। हमारी तो एडवाइस है। इंडोर में है तो मैं तो करा के ही मानूंगा, आउटडोर में है तो मैं पर्चे पे लिख के भेज दूंगा। नहीं करा के आओगे तो लिख दूंगा रिपोर्ट्स नॉट अवेलेबल येट। आज मैंने इन्वेस्टिगेशन बोला, 2 दिन बाद मरीज आया, कहा साहब फीवर नहीं ठीक हो रहा है, तो मेरी पहली लाइन होगी रिपोर्ट्स नॉट अवेलेबल येट, गेट द रिपोर्ट्स देन रिव्यू विथ मी। कोई कंप्रोमाइज़ नहीं कि हम तुम्हारा सेफिक्सिन बढ़ा दे रहे हैं, ओफ्लॉक्सासिन दे रहे हैं ना। वो 250-300 रुपये सीबीसी के बचा के आपको फंसा रहा है। तो नेवर बी इन ट्रैप। ब्लड शुगर है तो भैया करा के ले आओ। हम आपको मॉनिटरिंग के लिए एक डिवाइस बता दिए हैं, आप घर पे कर रहे हो, लेकिन महीने में एक बार हमको दिखाने आ रहे हो तो एक रिपोर्ट पैथोलॉजी की ले करके, या फिर एक कॉपी बनाओ, उस कॉपी पे लिखो, मैं उसको देखूंगा। अपने पर्चे के पीछे भी लिख दूंगा कि आपका लास्ट 2 ब्लड शुगर ये है। स्पेशली तब जब मैं उसकी एंटी डायबिटिक्स को चेंज कर रहा हूँ। ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स से हमको एक से रिस्पॉन्स नहीं मिला, हम दूसरे पे जा रहे हैं, तो क्यों जा रहे हैं ये वजह हमको डॉक्यूमेंट करनी पड़ेगी। पेशेंट को मैं एंटी कन्वर्जेंट दिया हूँ कार्बामेज़ेपिन, और मेरा सोचा था कि ये पार्शियल सीजर है, ये तो जनरलाइज है, कार्बामेज़ेपिन से नहीं रिस्पॉन्ड कर रहा है, तो मैं उसको नोट करूँगा। द पैटर्न ऑफ सीजर अपीयर टू बी जनरलाइज, इनिशियल हिस्ट्री वॉज सजेस्टिव ऑफ फोकल सीजर्स, सो आई विल बी टेपरिंग ऑन कार्बामेज़ेपिन एंड पुटिंग द पेशेंट ऑन वेलप्रोइक एसिड। पेशेंट को फीवर रन कर रहा है, पेशेंट ओपीडी में आया, एडमिट हुआ, और आपने उसको एक एंटीबायोटिक दे दिया, आप एंटीबायोटिक चेंज कर रहे हो, तो देयर शुड बी अ रीज़न कि आपने क्यों चेंज किया। सिर्फ चेंज करते जा रहे हैं। पेशेंट मेरे पास 5 दिन से है और हमने एक ब्लड कल्चर भी नहीं भेजा, ये सोचते हुए कि यार इसको तो एंटीबायोटिक चल रही है, ब्लड कल्चर में क्यों कराऊं, तो दिस विल नॉट वर्क। आप कराइए। फीवर रन कर रहा है पेशेंट को, अगर आपकी एंटीबायोटिक से उस पेशेंट को रिस्पॉन्स नहीं आ रहा और उसको वास्तव में बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, तो हो सकता है वो बैक्टीरिया ग्रो करे जिसकी वजह से उसको फीवर आ रहा हो। स्टेराइल आएगा, कोई बात नहीं, हमने एफर्ट किया एविडेंस ढूंढने का, नहीं मिला, हमने एम्पिरिकल लेवल पे एंटीबायोटिक्स चेंज की क्योंकि उसकी काउंट्स बढ़ी हुई थी, यहाँ पेशेंट को फीवर रन कर रहा था। तो ये चीज़ें अगर आपके आईपीडी में डॉक्यूमेंटेड नहीं हैं तो नाउ योर सर्विसेज आर कॉम्प्रोमाइज्ड। इफ एंड रिजल्ट इज गुड यू आर फाइन, आपने झंडे गाड़ दिए, आपने इतने दिन का बुखार ठीक कर दिया, एंड रिजल्ट इज नॉट गुड, तो आपने साहब ले भी लिया और जान भी ले ली, तो दैट इट इज़ नॉट गुड। डिस्चार्ज, पेशेंट ठीक होकर घर जा रहा है तो डिस्चार्ज का डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए।
डिस्चार्ज के बारे में बहुत मेटिकुलस रहना चाहिए कि हमने क्या डायग्नोसिस बनाई है और हमारी केस शीट पे क्या है वो दोनों सेम हो। डिस्चार्ज की एक फ़ोटोकॉपी आपकी केस शीट का पार्ट होना चाहिए। डिस्चार्ज पे पेशेंट के साइन होने चाहिए। आपने पेशेंट को ऑपरेट किया है अपेंडिसाइटिस के लिए तो उसको लिखना पड़ेगा कि उल्टी हो, दस्त हो, गैस न पास हो, पेट फूल जाए, आपको तत्काल अस्पताल आना है। दीज ऑल आर सिंपल लेमैन साइंस फॉर लीक। मैं पीडियाट्रिशियन हूँ, पेशेंट को झटका आ रहा है तो उसको बोलना पड़ेगा कि देखो पानी के पास मत भेजना। बच्चा स्कूल जाता है साइकिल पे तो आप साइकिल पे मत भेजो, झटका आएगा तो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो सकता है। स्विमिंग पूल में मत भेज देना, स्कूल वालों को बता देना कि सीढ़ी पे अकेले ना भेजें। तो दीज प्रिकॉशंस शुड बी इन अ प्रिंटेड फॉर्मेट एंड कैन बी हैंडेड ओवर टू द पेशेंट। तो ये ज़रूरी है, कई बार ओपीडी में हम इतना एक्सटेंसिव नहीं हो सकते तो हमको लिख देना चाहिए प्रिकॉशंस एंड केयर रिलेटेड टू डायबिटीज़ एक्सप्लेन्ड, प्रिकॉशंस एंड केयर रिलेटेड टू सीजर एक्सप्लेन्ड। तो पेशेंट को पानी के पास नहीं जाना है, बिजली के सामान को नहीं छूना है क्योंकि वो उसके लिए जानलेवा हो सकता है। ये उसको एडवाइस देना हमारा प्रोफेशनल सर्विस का पार्ट है। तो उसमें हम ये नहीं कह सकते कि हमको भाई ये तो मरीज का खुद का काम था। पेशेंट डायबिटीज़ का है तो आप डाइट के लिए बताते हो उसको, नहीं तो डाइटिशियन के पास भेजते हो कि भाई आपकी डाइट क्या हो। आप देखेंगे कि डायबिटीज़ तो डाइट और मैनेजमेंट और एक्सरसाइज का इंटरप्ले है आपकी बॉडी के बीच में। तो अगर आपने नहीं कम्युनिकेट किया, नाउ इट इज़ योर फॉल्ट। तो यहाँ पे हमको थोड़ा अलर्ट होना पड़ेगा। हम इसके लिए प्रिंटेड फॉर्मेट्स यूज़ कर सकते हैं, अपने एक स्टैम्प बना सकते हैं। जैसे पीडियाट्रिशियन है, हर बच्चे को कह देता है 6 माह तक माँ का दूध पिलाना है। और आज की डेट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहती है कि आफ्टर सीजर बच्चे को माँ का दूध पिलाना इज़ एन इमरजेंसी। यू कैन नॉट टेक इट कि यहाँ हमने बोल दिया। इस्टेब्लिश हुआ कि नहीं हुआ फीडिंग, ये भी देखना पीडियाट्रिशियन और ऑब्स्टेट्रिशियन का कंबाइंड ड्यूटी है। नहीं इस्टेब्लिश हुआ तो आपने अल्टरनेटिव क्या किया? हाइपोग्लाइसीमिया से उसको लिए ज़िंदगी भर के लिए क्रिपेल्ड हो जाएगा, वो मेंटली हैंडीकैप हो जाएगा। तो आपके लिए वो एक सिंपल एडवाइस है, उसके लिए लाइफ सेविंग है। हाउ कैन यू कंप्रोमाइज? तो मेयरली डूइंग अ सीजर एंड सेइंग इसको माँ का दूध पिलाना विल नॉट वर्क। हमको इस्टेब्लिश करना होगा इसका यूरिन आउटपुट हो रहा है, बच्चे की क्राइंग कम हुई है, मदर सेटिस्फाइड है। तो ये चीज़ें आपके प्रोफेशनल सर्विस के पार्ट में आती हैं। जब हम डिस्चार्ज दें तो ऑब्वियसली डिस्चार्ज की सारी डिटेल्स अपने पास रखें, रिपोर्ट्स को भी रखें जो भी पेशेंट से हमने उसके ट्रीटमेंट में कराई हैं। लाइक एक कार्डियोलॉजिस्ट है, पेशेंट को ट्रीट कर रहा है एरिथमिया के लिए, उसके पास ईसीजी की रिकॉर्डिंग नहीं है तो अब ये तो भाई कोई मतलब नहीं है, तो डायग्नोसिस इज इन क्वेश्चन। आपने मॉनिटर पे देखा, बढ़िया से इमिडोरियम दे दिया, मरीज मेरा ठीक हो गया ना साहब, मैं कुछ नहीं हुआ था, इन्होंने मुझे बेवजह भर्ती किया, 50,000 का बिल पकड़ा दिया। अब उसकी ईसीजी की रिकॉर्डिंग आपके पास नहीं है तो आप कहाँ हो? यू आर नोवेयर। क्योंकि एरिथमिया की डायग्नोसिस स्टेथो से नहीं बननी है। स्टेथो से आप टैकीकार्डिया बोलोगे, आप बहुत क्लिनिकली आपका एक्यूमेंट अच्छा है तो आप बोलोगे एक्स्ट्रा सिस्टोल आ रहा है, पल्स रेट हार्ट रेट डिफरेंट है। यू कैन हैव अ क्लू बट यू कैन नॉट क्लिंच ऑन द डायग्नोसिस। तो उसके लिए आपको ईसीजी चाहिए। इको से आप एरिथमिया कितना डायग्नोस करोगे? नहीं कर सकते। तो हर डायग्नोसिस का और हर डिजीज़ का और हर इन्वेस्टिगेशन का अपना लिमिटेशन है। वी शुड ऑनर दैट कि हमने ये डायग्नोसिस लिखा है तो उसका एक प्रूवन डॉक्यूमेंट हमारे पास हो, नहीं भी हो हमारा एफर्ट विजिबल हो। मैंने सेप्टिसीमिया लिखा है, कल्चर नेगेटिव है, तो कल्चर नेगेटिव सेप्सिस एक एंटिटी है, उसको फंगीमिया भी हो सकता है, हम उसके लिए भी सर्च कर सकते हैं। वायरल सेप्सिस भी हो सकता है जिसमें हमको वायरल कल्चर कराने की फैसिलिटी नहीं है। तो हमारा एफर्ट विजिबल होना चाहिए कि हमने प्रयास किया, हमको ये नहीं मिला, हमने एम्पिरिकल लेवल पर ट्रीट किया। तो ये बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं जो हम लोग डे टू डे लाइफ में कर सकते हैं। और इन्वेस्टिगेशन का बहुत बड़ा फ़ायदा होता है, चाहे पॉलिटिक्स में चाहे मेडिसिन में। पेशेंट को बिजी रखता है। मरीज का बुखार नहीं ठीक हुआ, यार एक सीबीसी करा लो, सीबीसी की रिपोर्ट आने तक वो वेट करेगा। अदरवाइज तो आपका सर खा जाएगा, साहब आप कर क्या रहे हो, केवल दवा दिए जा रहे हो, इतनी महंगी दवाएं मैं दे रहा हूँ, मेरा मरीज को कोई फ़ायदा नहीं है। वो डॉक्टर नहीं है, वो आपसे यही चीज़ कहेगा। अब हमारे डिस्चार्ज में फॉलोअप और रिव्यू की डेट्स जरूर से लिखी होनी चाहिए कि हम पेशेंट को कब बुला रहे हैं देखने के लिए। और जब हमने फॉलोअप रिव्यू में देखा तो हमारे पॉजिटिव और नेगेटिव रिमार्क्स एज पर माई ट्रीटमेंट एंटर्ड होने चाहिए। पेशेंट का ब्लड शुगर है तो हाँ रेंज में है, पेशेंट का कार्डियक प्रोफाइल है तो पेशेंट हीमोडायनामिकली स्टेबल है, हमारे पास बच्चा आया तो उसका डिहाइड्रेशन था, अभी डिहाइड्रेशन ठीक है। तो ये चीज़ें हमको उस पर मेंशन करनी चाहिए।
फॉलोअप में अगर पेशेंट फॉलोअप में आ रहा है और समय पे नहीं आ रहा है या आपने जो दवाएं दी नहीं ले रहा है, सपोज उसका ब्लड शुगर बढ़ा हुआ है, आपने उसको कुछ बोला, ये बहुत होता है, अपने मन से वो दवा घटा लेते हैं। एंटी कन्वर्जेंट्स हम दे रहे हैं 5 ml दिन में 2 बार बोला है वो 3 ml कर देते हैं, उसको किसी ने बोल दिया दिमाग पे असर करती है कम दवा लो, ये सब होता है। लेकिन जब आप उससे चैम्बर में बोलेंगे कि यार ये तुम्हारे बच्चों को झटका रहा है, दवा कैसे दे रहे थे, तो बताता है कि साहब, क्योंकि अब उसका लाइफ स्टेक पे है ना, उसका बच्चा स्टेक पे है, तो बताएगा ज़रूर कि डॉक्टर साहब वो फलाने दवा वाले ने बोला था हम 3 ml कर दिए थे। तो यू हैव टू राइट इट इन योर डिस्क्रिप्शन कि भाई कंप्लायंस इज़ पुअर या फॉलोअप इज़ पुअर या पेशेंट का एडेरेंस नहीं है, हमने बोला था ये दवाएं लो नहीं ले रहा है, यू हैव टू मेंशन इट। ये मेंशन कर देने से आपकी सेफ्टी बढ़ जाती है। तो छोटे छोटे शब्द हैं जो कि आपकी मदद बहुत करते हैं और आप बचते हैं। इससे ये प्रूव करता है पेशेंट खुद से नेग्लिजेंट है। इवन यू कैन राइट फॉन्ड ऑफ लाइक टेकिंग मल्टीपल कंसल्टेशंस। तो कोई मरीज अगर 5 दिन में 6 डॉक्टर को दिखा दिया तो ये बाई इटसेल्फ कह रहा है कि ये पेशेंट है, ये इसका धैर्य नहीं है बिल्कुल, ये चाहता है तुरंत फ़ायदा हो। मेडिकल साइंस में तुरंत कुछ होता नहीं है, केवल डेथ ही हो सकती है जो तुरंत हो सकती है, बाकी ठीक होने में तो टाइम लगेगा। तो जो वार्निंग साइंस हैं, पोस्ट सर्जिकल इंस्ट्रक्शंस हैं, केयर है, हमने एक वुंड के साथ डिस्चार्ज किया है, स्टोमा बैग लगा दिया है, तो उसकी केयर के लिए हमको बताना पड़ेगा, नहीं बताएंगे फंसेंगे। पेशेंट प्यूपरल सेप्सिस का है, उसको बताना पड़ेगा भाई तुम्हारे इंट्राइटस से डिस्चार्ज आ रहा है तो तुमको ये चीज़ें करनी हैं, बढ़ गया तो आना पड़ेगा तुरंत। इतनी फ्रीक्वेंटली पैड चेंज कर रहे हो, तुम्हारा नॉर्मल डिलीवरी हुआ है, ब्लीडिंग हो रहा है, तो तुम्हें जल्दी आना पड़ेगा। हमारा ब्लीडिंग हो रहा है, कुछ प्लेसेंटा का पार्ट रह सकता है, कुछ रह सकता है, तुमको तुरंत आना पड़ेगा। तो ये चीज़ें हमें बतानी होती हैं अपने डिस्चार्ज में। नॉर्मल डिलीवरी में अक्सर लोग सेम डे या कुछ घंटे में डिस्चार्ज कर देते हैं। इट शुड बी डन ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द पेशेंट, इन राइटिंग रिक्वेस्ट कि मुझे घर जाना है, अदरवाइज नहीं करना चाहिए। दोनों लोग रिस्क पे हैं, माँ भी बच्चा भी। अर्ली यूनिटल लाइफ में रिस्क बहुत है। ऑब्स्टेट्रिशियन ने भेज दिया, डिलीवरी उसके अस्पताल में हुई है, तो पीडियाट्रिशियन विल नॉट बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल। वो रहता, मुझे देखने के लिए बुलाया जाता तो मैं जाता, उन्होंने भेज दिया तो मैं क्या करूँ। सो यू आर टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ 2 lives, अ मदर एंड अ चाइल्ड। सो वन शुड बी वेरी केयरफुल डूइंग सच थिंग्स। सीजरेन हुआ, हम 4 दिन पे 5 दिन पे डिस्चार्ज कर दे रहे हैं, पेशेंट की कोई प्रॉब्लम है, अगर हमारे प्रिवेलेंट प्रोटोकॉल्स कहते हैं हम करें, हमारी प्रोफेशनल बॉडीज़ कहते हैं करो तो हम करें। अब छोटी सी बात कहूँगा कि सीजर है तो फोलिस का कितना रोल है और K90 का क्या रोल है, ऑब्स्टेट्रिशियन अच्छे से समझती है। तो आपने फोलिस डाल दिया और पेशेंट को बाद में स्ट्रक्चर हुआ तो यू कैन बी लाइक स्यूड कि भैया आपको K90 से कराना था, 2 दिन बाद आप उसको घुमा के यूरिन कराते, क्यों आपने फोलिस डाल के 7 दिन छोड़ दिया। तो सच थिंग्स शुड बी डेवलप्ड इनटू आवर प्रैक्टिस, क्योंकि जब उसको स्ट्रक्चर होगा और वो यूरोसर्जन के पास जाएगा तो यूरोसर्जन एक सिंपल सा रिमार्क दे सकता है, अच्छा ऑपरेशन हुआ था, फोलिस पड़ा रहा होगा। वो नेट पे ढूंढेगा फोलिस के क्या कॉम्प्लिकेशन है, उसको एक मुफ्त का वकील मिल जाएगा जो ठेके पे केस ले लेगा और आपको कोर्ट में घसीट लेगा। परिणाम क्या होगा ईश्वर जाने, समय जाने, लेकिन आपकी परेशानी बढ़ी हुई समझिए। तो वी हैव टू गो फॉर द थिंग्स विच आर रिकमेंडेड एंड वी शुड डू। Always on discharge, all facts pertaining to treatment, surgical procedure, precautions, investigations, warning signs, risk factors and follow-up, and it should be mentioned and signed by the patient कि ये सारी चीज़ें हमको डॉक्टर ने बता दी हैं और मैंने समझ लिया है। It should be in हिंदी और आपके डिस्चार्ज पे मरीज का साइन होना चाहिए। बहुत कॉमन सी प्रॉब्लम है ये, पेशेंट डिस्चार्ज हो जाता है उस पर डॉक्टर के कहीं साइन नहीं होते, उसके हॉस्पिटल के एक स्टाफ ने डिस्चार्ज बना दिया और वो डिस्चार्ज लेके घूम रहा है। ये अपने आप में प्रूव कर देगा कि आपका एटीट्यूड आपके पेशेंट के लिए नेग्लिजेंट है। यू कैन नॉट गिव डिस्चार्ज अ पेशेंट विदाउट योर साइन। इफ़ यू आर नॉट एबल तो आपके हॉस्पिटल का आरएमओ साइन करता है। आरएमओ कौन होगा? जो आपकी अपनी पैथी से जुड़ा हुआ होगा, लाइक ही शुड बी एन MBBS and he should be duly appointed by you and salary should be paid through the account। आपने कैश में एक आरएमओ को रखा हुआ है, कोर्ट उसको नहीं मानता, तो आप उसी को मानेंगे जो आपके थ्रू एम्प्लॉयड है और आपकी साइन उस पर होनी चाहिए। अदरवाइज ये दोहरी गलती है, आपने देखा भी नहीं और आपने बना के भेज भी दिया।
What should not be done? We should not give any exclamatory expressions or negative remarks for our colleagues of any branch. At least we can say, अच्छा प्रतिभा मैडम ने देखा है, हाँ बताओ क्या बात है। तो उसको ये लगता है कि डॉक्टर भागवानी डॉक्टर प्रतिभा को जानते भी हैं और वो उनकी सीनियर भी है, कह रहे हैं प्रतिभा मैडम ने देखा है या सर ने देखा है। तो दैट लीव्स अ फेथ इनटू द पेशेंट्स माइंड फॉर बोथ द डॉक्टर्स। वंस आई विल से, अच्छा प्रतिभा जी को दिखा के आ रहे हो, तो अब उसको लगेगा यार ये हम कहाँ दिखा दिए। तो नाउ दिस वन सेंटेंस क्रिएट्स अ लॉट ऑफ नेगेटिविटी अबाउट योरसेल्फ एंड द डॉक्टर बोथ। दैट अगेन कम्स कि हम अपने प्रोफेशनल कलीग्स को पूरा रिस्पेक्ट दें। हम उसके पर्चे से उसकी डायग्नोसिस से कोई इत्तेफाक नहीं रखते और मैं मान रहा हूँ उन्होंने सब गलत किया है। इवन देन मुझे वो डॉक्टर वाईडी सिंह का एक कहा हुआ लाइन याद आता है, आर्यवर्त हमारे सेंटर में कहा था कि यार मेरा कोई कलीग अगर किसी मरीज को पॉइजन लिख के दे देगा तो मैं उसको एंटीडोट लिख के भेज दूंगा, बाद में उसको बुलाऊंगा और बोलूँगा अबे तुमने क्या किया। अगर मेरा जूनियर है तो सीनियर है तो बोलूँगा अरे सर। तो ये तो हमको एक डेकोरम मेंटेन करना पड़ेगा अपने कलीग्स के लिए। हमको अपने पेशेंट की कोई भी कॉन्फिडेंशियलिटी और प्राइवेसी ब्रीच नहीं करनी है। कोई भी अनएथिकल सॉलिसिटेशन, एडवर्टाइजमेंट या रिसीविंग या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गिफ्ट्स नहीं करना है। आपके पास कोई व्यक्ति कुछ गिफ्ट ले आ रहा है, उसके पास मोबाइल है, वो रिकॉर्ड कर रहा है, वो आपके लिए एक इशू हो सकता है। प्रूव हो न हो वो एनएमसी में जा सकता है, आपको जाना पड़ेगा। आने जाने का खर्चा, प्रैक्टिस छोड़ना उस गिफ्ट से महंगा पड़ जाएगा। तो वो सब चीज़ें हमको अपनी मैनेज करनी होगी कि हम कैसे कर रहे हैं। हम आईएपी में कई सारी चीज़ों पे टॉक देते हैं, कंपनी हमको ऑनरेरियम देती है उस टॉक को देने का। आई ऑलवेज टेक इनटू माय अकाउंट, मैं उसको अपना आईटीआर में सबमिट करता हूँ कि ये मेरी प्रोफेशनल इनकम है अदर सोर्सेज से। उससे ये रहता है कि आप जो भी चीज़ें हैं ट्रांसपेरेंट रखे हुए हैं। कोई आपको ये नहीं कह सकता कि आप छुपा के कर रहे हैं। कंपनी भी आपको टीडीएस काट के देती है और आपका सब कुछ डॉक्यूमेंटेड होता है। सो यू आर नॉट डूइंग समथिंग विच इज़ अनएथिकल, नॉन ट्रांसपेरेंट, अनसॉलिसिटेड। कंपनी भी आपसे एक एग्रीमेंट करती है, आप उस एग्रीमेंट के पार्ट हो, आप प्रेजेंटेशन देते हो, पे करते हो। सो इफ़ इट इज़ ट्रांसपेरेंट, इट इज़ डिक्लेयर्ड, नो यू आर नॉट एट फॉल्ट। There should be no procedure without consent except in a documented life-threatening emergency and life-saving procedures with documentation. रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट आ गया, अब वहाँ पे ऑर्थोपेडिशियन भी है, न्यूरोसर्जन भी है, सर्जन भी है, मरीज बनने वाला है, उसको मैक्सिलोफेशियल इंजरी भी है, एयरवे कंप्रोमाइज्ड है। अब पुलिस लेके आई है, कंसेंट कौन देगा? या रोड से लोग उठा के लेके आ गए, अकेला आदमी पड़ा हुआ था, कंसेंट कौन देगा? मैं एक बहुत पर्सनल डिटेल शेयर करूँगा। मैं शाही सर के साथ लखनऊ गया था, उनका रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ था और उस समय कंडीशन ऐसी थी कि मैडम कंसेंट नहीं दे सकती थी, मैंने कंसेंट दी थी। वहाँ सारे लोग मेरे सीनियर थे, वो कहे यार तुम तो लखनऊ से पास आउट हो। मैंने कहा हाँ सर यहीं पे हो? मैंने कहा नहीं सर मैं पास हो गया हूँ, मेरे सर इनका एक्सीडेंट हो गया। तो सर की कंडीशन ऐसी थी कि रिक्वायर्ड एन इमीडिएट ट्रैकियोस्टमी। ENT सर्जन मेरे इलाहाबाद के सीनियर थे। तो कहे यार भागवानी तुम देखो मैं इनको कर रहा हूँ तुरंत। संजय अग्रवाल सर न्यूरो सर्जन थे, उन्होंने कहा नहीं इसको तुरंत वेंट पे रखो। तो इतना कुछ इसलिए हो पाया कि मैं डॉक्टर था, उतने डॉक्टर मुझे जानते थे। और अगर मैं बिल्कुल लेमैन की तरह जाता, कंसेंट में नहीं देता, तो वो कैसे काम करता? तो वो सब कुछ करना पड़ा, इमीडिएटली सब कुछ होता गया। लेकिन उन्होंने डॉक्यूमेंट किया कि इनकी कंडीशन गैस्पिंग है, CT स्कैन में ये है। उन्होंने ट्रैकियोस्टमी मेरी कंसेंट से पहले कर दी थी। मैं तो मैडम के साथ उनके चैम्बर में बैठा हुआ था। तो पेशेंट की क्या कंडीशन है हमको डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा। पेशेंट शॉक में है तो कंसेंट की नीड नहीं है, लेकिन शॉक शुड बी डॉक्यूमेंटेड। पेशेंट एंटीपार्टम हेमरेज लेके आ रहा है, डिसओरिएंटेड है, BP नॉन रिकॉर्डेबल है, पल्स बिल्कुल थ्रेडी है, टैकीकार्डिया हो रहा है, 150 प्लस है, पेशेंट पेल है, उसका हीमोग्लोबिन हमने कराने के लिए भेज दिया तो 5 आया, हमने 2 ब्लड अरेंज किया और एब्डोमेन खोल दिया, मैंने गलत नहीं किया, बट दैट शुड बी डॉक्यूमेंटेड। आपका कलीग भी उसको डॉक्यूमेंट करे और आप भी डॉक्यूमेंट करो, ये बहुत ज़रूरी है। आपका एनेस्थेटिस्ट भी उसको डॉक्यूमेंट करे, क्योंकि OT में पेशेंट की लाइफ के लिए वो रिस्पॉन्सिबल है। आप तो सर्जिकल प्रोसीजर कर रहे हो, ऑर्थोपेडिशियन है, टांग को तोड़ रहा है, वो लाइफ सेविंग नहीं है। बहुत होगा भाई, एक टांग खराब हो जाएगी, हैंडीकैप होगा, एक और ऑर्थोपेडिशियन को इन्वॉल्व कर लेंगे एज पर द लॉ। बट पेशेंट का वाइटल तो सर्जन के हाथ में, एनेस्थेटिस्ट के हाथ में। तो कई बार मैं देखता हूँ एनेस्थेटिस्ट, पेशेंट अभी आउट भी नहीं हुआ है, वो पोस्ट ऑप नोट्स भी डाल देता है उसी फाइल में।
मैंने कहा यार ये कर रहे हो, भगवान न करे, हाउ विल यू मैनेज द केस शीट? सो इफ पेशेंट इज इन योर हॉस्पिटल, यू हैव टू डेवलप अ रैपो विद एनेस्थेटिस्ट ऑल्सो कि यार जो काम जब करना है तब करो। सीजर के पहले मैं पोस्ट सर्जिकल नोट्स कहाँ से डाल दूँ? ये सब हो रहा है, मैं देख रहा हूँ तब कह रहा हूँ। सो वी शुड चेंज आवर वे ऑफ प्रैक्टिस इन lieu of money. We can reduce the number of patients, we can take a bit more charge, and we should give a better care. Patients have got money now. If they have got no money, government is there for Ayushman. There is a district hospital, there is AIMS, there is BRD, you can send them anywhere. But if you are dealing 100 patients, running a very huge IPD, be dead sure how much competent you are. You are daily making mistakes, and it is your luck that you are not pulled into the court of law. So you have to reduce your practice. अदरवाइज तो भाई इश्यूज आने हैं। जब तक आप उस टाइम बम पे बैठे हो, जब तक नहीं फटा आप सेफ हो, फट गया तो आप अनसेफ हो। देयर इज नो प्लेस फॉर ब्लैंकेट कंसेंट कि हम तुम्हारा ऑपरेशन कर रहे हैं। ऑपरेशन किस चीज़ का कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, ये बताना ज़रूरी है। अपेंडिक्स भी ऑपरेशन है, सिजेरियन भी ऑपरेशन है, और फ्रैक्चर बोथ बोन लेग भी ऑपरेशन है, और हम एक पेसमेकर डाल रहे हैं वो भी एक ऑपरेशन है, एक एब्सेस ड्रेन कर रहे हैं वो भी ऑपरेशन है। तो हमें बताना तो होगा हम क्या कर रहे हैं। हम उसका दिमाग खोल के बैठे हुए हैं, उसको SDH हो गया है, वो भी एक ऑपरेशन है। उसकी आई सर्जरी हो रही है, वो भी एक ऑपरेशन है। ENT भी ऑपरेशन है, नोज़ भी ऑपरेशन है, मैक्सिलोफेशियल वाला भी ऑपरेट कर रहा है। सो हमको देखना होगा कि हम क्या ऑपरेट कर रहे हैं। हमने ये नहीं लिखा तो फिर इसका कोई एक्सक्यूज़ नहीं। साहब आप क्या ऑपरेट कर रहे थे, आपकी वर्किंग डायग्नोसिस क्या थी? आप पेशेंट का पेट खोल दिए, चलिए आपको नहीं पता था पेट में क्या है, आप लिखते ना एक्सप्लोरेटरी लेप्रोटमी कर रहे हैं, आपने क्यों नहीं लिखा? आपको नहीं समझ में आ रहा है पेट में क्या है, अल्ट्रासाउंड कुछ नहीं है, पेशेंट एक्यूट एब्डोमेन चिल्ला रहा है, उसका स्कोटम नॉर्मल है, वॉल्वुलस नहीं है उसको, और आपकी रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं, आपको एक्सप्लोर करना है तो आप लिखिए एक्सप्लोरेटरी लेप्रोटमी। दैट इज अ डायग्नोस्टिक प्रोसीजर, कोई दिक्कत नहीं है, बट इट शुड बी इन द केस शीट, इट शुड बी इन द कंसेंट। द डायग्नोसिस इटसेल्फ विल डिफाइन कि आपका अप्रोच क्या है, पेशेंट को आपने क्या बताया है। आपने नहीं बताया, दैट इज लैक ऑफ कम्युनिकेशन। तो आपका डॉक्यूमेंटेशन भी कंप्रोमाइज है, आपका कम्युनिकेशन भी कंप्रोमाइज है। एंड अगेन यू से यार मैं तो डॉक्टर था, मुझे उन्होंने फंसा दिया। तो आप फंसाए नहीं हैं, आप फंसे हैं खुद। सो यू हैव टू बी टेक केयर ऑफ योर सेल्फ ऑल्सो। एंड माई टीचर यूज टू से सेव योर स्किन फर्स्ट, बिकॉज नेक्स्ट डे मॉर्निंग यू विल बी इन द OPD ओनली व्हेन you are mentally free of such things. There should be no place for guaranteed treatment benefits. There should be no communication like that. Possibly no free camps. It is derogatory in the name of social service. Moreover, it kills professional perspective and attire. Nobody is going to give you anything for free. So why you are giving free? And free की चीज़ ना हमेशा बुरी होती है। आपके घर में बहुत काबिल बच्चा हो, आप बहुत अच्छे सिद्धांतवादी हो, बेटा आपका IAS हो गया है, बेटी IAS हो गई है, तो बेटे के लिए आपने कह दिया कि हम दहेज नहीं लेंगे, तो नोबडी विल थिंक दैट यू आर अ गुड पर्सन। यार लड़के में कुछ कमी है क्या, परिवार में गड़बड़ी है। तो बुरी चीज़ की भी एक रिक्वायर्ड कीमत होती है। अगर हमको बेटियाता में कोई ज़मीन देगा, बोलेगा साहब 5,000 रुपये फुट में मिल जाएगी, हम आपके लिए सौदा लाए हैं, मैं उससे बात भी नहीं करूँगा। मुझे मालूम है वहाँ ज़मीन का रेट ये नहीं है, लफड़ा है, तो उस लफड़े में क्यों फंसूँ? तो 2 ही 3 चीज़ें आपको फंसाती हैं, लालच, ग्रीड, कि इसको लेके हमको कुछ मिलेगा। तो आपको उस ग्रीड से बचना है। आप पढ़े लिखे हो, आप बुद्धिजीवी हो। पशु के तीनों लेवल बराबर होते हैं, दिमाग, दिल और पेट। हमारा ऊपर दिमाग है, बीच में दिल है, नीचे पेट है। भगवान ने ऐसे बनाया तो ऐसे सोचना पड़ेगा। आप केवल जेब का सोचोगे तो भाई दिक्कत आएगी। ज़रूरी है जेब का सोचना, क्योंकि जब आप सिस्टम में फंसते हो तो काम केवल जेब आती है, जिसके लिए आप इतनी सारी गलतियाँ करते हो। तो बहुत सारे पेशेंट का कमाया हुआ एक बार में निकल जाता है, तो हम कुछ कम कमा लें। वाई टू हैव अ मेंटल ट्रॉमा विथ सच थिंग्स। इवन टू बी वेरी फ्रैंक एंड प्रिसाइज, हमारी IMA क्लिनिक चल रही है, मैं एक RTI डाल के पूछ लूँ CMO ऑफिस से, चल रही है, लीगल है कि इलीगल, हमारे पास कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है। सो पेशेंट को हम फ्री देख रहे हैं, वो बोल दे कि डॉक्टर इलीगल प्रैक्टिस कर रहे हैं, IMA विल बी इन ट्रैप, जो एसोसिएशन विल बी इन ट्रैप। तो हमें ऐसी चीज़ों से बचना चाहिए। We should not operate without a medical fitness unless until it's a dire emergency. Patient रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में आया है तो मैं उसमें क्या करूँगा, मैं तो एनेस्थेटिस्ट को बुलाऊंगा, ऑपरेट करूँगा। बट रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट शुड बी डॉक्यूमेंटेड, सीरियसनेस ऑफ इंजरी शुड बी डॉक्यूमेंटेड, पेशेंट का रिक्वायर्ड इन्वेस्टिगेशन जो भी पॉसिबल है हमें करना होगा, पेशेंट के प्रोफाइल के हिसाब से करना होगा। न्यूबॉर्न के इन्वेस्टिगेशन अलग हैं, फीमेल पेशेंट के अलग हैं, ENT सर्जन के अलग हैं, डायबिटिक्स के अलग हैं।
हम एक रूटीन सर्जरी कर रहे हैं, हम HbA1c नहीं कराएंगे, मेटाबॉलिक एसिडोसिस मैनेज कर रहे हैं तो हम HbA1c कराएंगे। पेशेंट की प्रीवियस एंटी डायबिटिक्स की हिस्ट्री लेंगे, वो क्या दवाएं ले रखा है, कब से डायबिटिक है, उसके साथ उसको नेफ्रोपैथी है कि नहीं, डर्मोपैथी है कि नहीं, ये बताता है कि डायबिटीज़ लॉन्ग स्टैंडिंग है। पेशेंट की रिपोर्ट नॉर्मल है, आई हैव सीन अ डॉक्टर, उस डॉक्टर को प्रॉब्लम हुई, उसकी पैथोलॉजी से, अपनी पैथोलॉजी से उसकी रिपोर्ट 450 आई शुगर की, उसने कहा यार थोड़ी कम करके लिखो, वाइफ नहीं तो परेशान करेगी। एंड लेटर ऑन ही वॉज हॉस्पिटलाइज्ड एट SGPGI। सो जैसे कहा जाता है वकील सबसे खराब गवाह होता है, डॉक्टर सबसे खराब मरीज होता है। तो ये दे ऑफन टेक केयर कि यार मैं तो डॉक्टर हूँ, मुझे क्या होगा, आपको भी सब कुछ होगा जो मरीज को होता है। आपको भगवान ने वैसे ही बनाया, दिमाग दिया तो दिमाग का यूज़ करो, नहीं करोगे तो प्रॉब्लम में फंसोगे। विदाउट अप्रोप्रिएट कंसेंट हमको नहीं ट्रीट करना है। विदाउट एन एस्टेब्लिश्ड मेंशन रिटन डायग्नोसिस, प्रोविजनल डायग्नोसिस हमारी होनी चाहिए, उसको हम इम्प्रूव करते जा सकते हैं। रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस है, कॉज क्वेरी मेटाबॉलिक, लंग्स बिल्कुल क्लियर हैं, हार्ट बिल्कुल ठीक है तो मेटाबॉलिक कॉज हो सकता है। पेशेंट को चाइनीज स्ट्रोक ब्रीदिंग है, उसका ब्लड शुगर बढ़ा हुआ है, या वो पेशेंट डिहाइड्रेटेड है, तो डिहाइड्रेटेड में हमको क्रिएटिनिन नॉर्मल मिलेगा, यूरिया बढ़ा हुआ मिलेगा, तो हमारे रिपोर्ट्स में दिखना चाहिए वो। तो ये चीज़ें हमको देखनी पड़ेंगी और करनी पड़ेंगी। ये हमारा पार्ट ऑफ एजुकेशन भी है, पार्ट ऑफ प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। वी शुड नॉट फॉरगेट टू टेक अ हिस्ट्री ऑफ ड्रग एलर्जी। पास्ट मेडिकल एंड सर्जिकल हिस्ट्री इज इक्वली इंपॉर्टेंट। Past treatment consultation records should be taken. We have to rule out others associated systemic ailments and if present do the needful to address those issues. Patient को psoriasis है, मैंने स्किन वाले के पास भेजा ही नहीं क्योंकि यार मेरे यहाँ तो एडमिट हुआ ठीक हो गया चला गया ना, दिस इज नॉट रिकमेंडेड। पेशेंट का विजन कंप्रोमाइज है, हमने उसको ट्रीट कर दिया कार्डियक कॉज के लिए, तो हमारे पर्चे पे होना चाहिए कि आप एक आँख के डॉक्टर को दिखा लो। एक न्यूबॉर्न है, मेरे पास ऑक्सीजन में एडमिट रहा, मैं उसको ऑप्थेल्मिक्स के पास भेजूंगा कि इसका आरोपी के लिए स्क्रीनिंग कर लो, वो ब्लाइंड हो गया तो मेरे पास करोड़ों का आएगा मामला, कोर्ट हमें कहीं से छोड़ेगा नहीं। तो ये आपके पार्ट ऑफ डिस्चार्ज का होना चाहिए एंड इट शुड बी डॉक्यूमेंटेड इन टर्म्स ऑफ साइंड बाय द पेशेंट। नाउ व्हाट आर द टाइप्स ऑफ MLC केसेस। हम प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे हैं, गवर्नमेंट सिस्टम में नहीं है, हमारे पास कोई केस आ गया तो कहाँ पे हम ये नहीं कह सकते हैं कि साहब इसमें तो मेडिको लीगल नहीं है। तो जैसे असॉल्ट है, किसी ने किसी पर हमला कर दिया, डोमेस्टिक वायलेंस है, चाइल्ड अब्यूज़ है, एक्सीडेंट्स हैं, ट्रॉमा केसेस विद प्राइमरी इंडेक्स ऑफ सस्पेंशन। अब कोई आदमी बिल्कुल ठीक है, उसको घर पे चोट लग गई, कहा गाड़ी को चोट लग गई तो गाड़ी को भी लगी होगी, सड़क पे एक्सीडेंट हुआ तो भाई सड़क पे एक्सीडेंट का कुछ एविडेंस होगा। अब एक आदमी अपनी पत्नी को ले आ रहा है, उसका सर फटा हुआ है सुबह 6 बजे, तो भाई कैसे फट गया, वही पार्क में गई थी गिर गई, तो कुछ पार्क में एविडेंस होगा, कुछ भी नहीं है, भाई पार्क में गिर गई तो सर इतना कैसे फट गया, तो देयर इज सम ट्रॉमा, उसको असॉल्ट किया गया है तो आपको उसका ट्रॉमा रिकॉर्ड करना पड़ेगा। शी में लेटर ऑन गो इनटू द कोर्ट, आपका केस शीट वहाँ पे रिक्वायर्ड होगा। आप ये नहीं कह सकते हैं कि साहब हमको क्या मालूम, बीवी पति की लड़ाई हो गई, मुझ पर इलाज के लिए मैंने कर दिया ना, दैट इज अगेन अ नेग्लिजेंस ऑफ ड्यूटी। ट्रॉमा केसेस विद प्राइवेट इंडेक्स ऑफ सस्पेंशन, केसेस ऑफ एस्फिक्सिया, सफोकेशन है, हैंगिंग है, स्ट्रेंगुलेशन है, ड्राउनिंग है, आप उसको कतई ये नहीं कह सकते हैं कि हमारी जिम्मेदारी नहीं है, आपकी जिम्मेदारी है और आपका हर पेपर मेडिको लीगल पेपर कहलाएगा, कोर्ट आपको कभी भी बुला सकता है। कस्टोडियल डेथ्स हैं, डेथ्स इन ऑपरेशन थिएटर, अननेचुरल डेथ्स, डेथ्स ड्यू टू स्नेक बाइट, एनिमल बाइट, डेथ अकरिंग विद इन 24 आवर्स ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन इन एन अदरवाइज हेल्दी पर्सन, जिसका प्रीवियस हिस्ट्री नोन है कि उसको बहुत सारी प्रॉब्लम है, आपकी केस शीट पे लिखा है, वहाँ नहीं है, बिल्कुल ठीक ठाक सा पर्सन आया और अचानक से मर गया, यू हैव टू गो टेक इनटू अकाउंट कि भाई इसमें कुछ है, हम सारी चीज़ रिकॉर्ड करें। इलेक्ट्रिकल केमिकल इंजरीज हैं, पॉइजनिंग है, इंटॉक्सिकेशन है, अनडायग्नोस्ड कोमा है, कई बार ये होता है, हम लोग एज ए पीडियाट्रिशियन जानते हैं बच्चों को अफीम खिला दी जाती है, तो दैट ऑल हैपन्स इन लाइक जीलसी और एनवी और राइवलरी, सब चीज़ें होती हैं। अनडायग्नोस्ड कोमा है, बर्न्स एंड स्केल्स हैं, सेक्सुअल असॉल्ट्स एंड ऑफेंसेस है, क्रिमिनल एबॉर्शंस हैं, अटेम्प्टेड सुसाइड है, फायर आर्म इंजरीज हैं, ड्रग ओवरडोज है, ड्रग अब्यूज़ है, सबसे लास्ट बट सबसे इंपॉर्टेंट डेड ब्रॉट टू ER, मैंने इमरजेंसी रूम मैंने लिखा है बट इट कुड बी योर OPD ऑल्सो। तो डॉक्टर्स का क्या होता है, अरे तो ब्रॉड डेड है, मरीज कहता है आप सर्टिफिकेट दे दो, यू शुड नेवर गिव, यू डोंट नो हाउ ही इज इनटू दिस कंडीशन। आपने दे दिया और बाद में कोई फाउल प्ले हुआ, देयर इज एविडेंस, मुंबई में ये हुआ एक डॉक्टर के साथ, उसके बड़े क्लोज कॉन्टैक्ट्स ने बोला कि सर इसकी डेथ हो गई और डॉक्टर ने सर्टिफिकेट इशू कर दिया।
उधर उसके जो दूसरी पार्टी थी उसने एफआईआर कर दी, वो डॉक्टर को एक्यूज बना उस केस में, 6 महीने जेल में रहा कि आपने उसके डेथ के कॉज को हाइड करने में प्राइमरी जो एक्यूज है उसकी हेल्प की है, आपने सर्टिफिकेट दिया क्यों? यूपी गवर्नमेंट का जीओ है, ये काम अब पीएमएस का भी आदमी नहीं करता है। ब्रॉड डेड को डेथ सर्टिफिकेट नहीं देना है, बिना पोस्टमार्टम के पीएमएस का डॉक्टर भी नहीं देता है। तो हमारी आपकी जो लीगल सिचुएशन है बहुत कंप्रोमाइज है, उससे बहुत नीचे हैं हम, तो किसी को भी सर्टिफिकेट नहीं देना है एटलीस्ट डेथ का। रेस्ट ऑफ द सर्टिफिकेट्स पे भी एक अच्छा प्रेजेंटेशन है, कभी आप लोग कहेंगे तो मैं दूंगा उसको, बट सर्टिफिकेट देने से पहले 100 बार सोचिए। हम लोग के पास स्कूल के बच्चे आते हैं, साहब बच्चे के लिए साइन कर दो, यार इसमें आँख का है, नाक कान का है, ब्लड ग्रुप का है, साइन करा लो, उनको दिखा लो, सर आप कर दो। तो भाई हम ऐसे कैसे कर दें, क्योंकि फाइनली उसमें नीचे मेरा साइन लिखा हुआ है, यदि आई हैव सीन ऑल द थिंग्स देन आई हैव साइन बिलो, यू आर द पर्सन रिस्पॉन्सिबल। तो मैं कह देता हूँ यार मेरा साइन भी तुम ही कर लो, कौन सा स्कूल के पास मेरा साइन है? जब इतना फर्जीवाड़ा आप कर रहे हो तो एक फर्जीवाड़ा और कर लो, व्हाई शुड आई बी इन ट्रैप? तो वो जाता है बाहर, मेरे स्टाफ से कहता है 500 ले लो यार, 1000 ले लो, करा के रख लेना, दिन में आएंगे 1 बजे ले लेंगे। तो अगर मैं उस ग्रीड में पड़ जाऊँ करूँ, मैं फंसूँगा। वो लीगल डॉक्यूमेंट है, मैं नहीं कह सकते साहब हम तो स्कूल को दिए थे, बच्चे की आँख बिल्कुल ठीक है, अभी आँख के डॉक्टर होनी तो दे कैसे दिए ठीक है? वो सुन नहीं सकता, उसकी हियरिंग, उसकी एजुकेशन कंप्रोमाइज है, आपने लिख दिया कि ठीक है, तो आपके हिसाब से वो कुछ नहीं है, कहीं पे वो बहुत कुछ हो सकता है। तो बिफोर साइनिंग अ पेपर थिंक, जैसे आप ज़मीन की रजिस्ट्री के समय बहुत कुछ सोचते हो, अपना पेपर लिखने से पहले बहुत कुछ सोचो, ऐसे मत लिखो आप। सो योर प्रोफेशनल अटायर, योर प्रोफेशनल इंटीग्रिटी, योर प्रोफेशनल रिस्पेक्ट, योर एजुकेशन, योर सोशल प्रोफाइल, एवरीथिंग इज एट स्टेक इफ यू आर साइनिंग इनएडवर्टेंटली विदाउट थिंकिंग। So with this I will end, and take home message is patients have lost their patience and doctors should avoid practicing impatiently. Thorough evaluation, careful examination, reasonably skillful care in addition to appropriate do's and don'ts will minimize litigations. Last but not the least, have an indemnity insurance, preferably through any professional group. Knowledge is not free, it requires patient listening, and I'm thankful to all of you. I'm thankful to GP Association Gorakhpur for considering me for this august opportunity. Thank you. For your such a practical and informative presentation, your clarity on medical legal do's and don'ts will definitely help us all practice more safely and confidently. I think we should once again give sir a big, huge round of applause. इतने प्रैक्टिकल तरीके से उन्होंने बताया है जो मुझे लगता है कि डेफिनेटली हम लोगों को बहुत ज़्यादा अपनी ओपीडीज और आईपीडीज में हेल्प करेगा। तो बिफोर मूविंग टू द डिस्कशन एंड एनी क्वेश्चंस फ्रॉम द ऑडियंस विल मूव टुवर्ड्स द क्विज सेशन। सो रूटीनली जैसे हम लोग क्विज करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन विल बी फ्रॉम लेफ्ट साइड, सेकंड क्वेश्चन विल बी आंसर्ड फ्रॉम द राइट साइड। डिस्कशन करा लीजिए आफ्टर क्विज सर विल मूव। क्विज में भी सर डिस्कशन ही है, बिकॉज डिस्कशन विल गो लॉन्ग, क्विज विल बी शॉर्ट एंड फॉर्म, इट विल बी डन इन 5 minutes, राइट? क्यों सर? क्विज कर लो। टू रेज योर हैंड्स बिफोर आंसरिंग। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज द बेस्ट वे टू रिड्यूस पॉसिबिलिटी ऑफ मेडिको लीगल mishaps. Option 1, good treatment. Option 2, good hospital. Option 3, good doctor. Or option D, documentation of communication. You raise your hand. Dr. Pandey sir, please select the candidate. You will answer. Documentation of communication. अब दोनों लोग किसी एक को सेलेक्ट करिए सर, आपको सेलेक्ट करना है। You just select one. इसीलिए हम फॉरगो करना चाहते हैं। प्रॉब्लम ये है कि आपका जो क्विज होगा, आपने जो टॉक दिया है, शुरू से आदमी सिंसियरली उसको सुन रहा है, आपके सारे आंसर उसमें टॉक में छिपे हुए, तो उसको कराने का क्या है? कोई जरूरत नहीं है। अगर मान लीजिए आप क्विज नहीं रखते हैं, क्विज रखते हैं और वो चीज नहीं होती है, तो इसका मतलब आपने जो ऑडियंस है उसको आपने कायदे से अप्रीहेंशन में कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ 2-3 चीजें जो आपकी छूट गई हैं उसके बारे में बात करना चाहूँगा। डॉक्यूमेंटेशन कीपिंग, अब डॉक्यूमेंटेशन कीपिंग की भी अपनी इम्पोर्टेंस होती है। कोर्ट में जब ये चीज़ें होती हैं, किसी इंडोर पेशेंट के लिए उसमें होती हैं, तो वो 5 years के रिकॉर्ड मांगते हैं, ठीक। मगर जब चीज़ें बैड हैपनिंग्स होने लगती हैं,
तो वो 20 साल की चीज़ों तक, 20 rather में 21 साल के पीछे तक के रिकॉर्ड हो जाते हैं। हम लोग के लिए बड़ा हेडेक होगा। 5 साल का रिकॉर्ड कीपिंग तो बहुत मुश्किल है, 21 साल का कहाँ से कर पाएंगे। ये 2-3 केसेस में ऐसे हुए हैं, इसलिए थोड़ा ये इशू ऑफ क्वेश्चन है, सही है कि गलत है ये हम नहीं कर सकते हैं, मगर रिकॉर्ड कीपिंग की बड़ी इंपॉर्टेंस है। दूसरी चीज़ें इन्वेस्टिगेशन बेस्ड जो आईपीडी के ट्रीटमेंट्स हो रहे हैं, वो चीज़ें पेशेंट आपने एडमिट किया, बैठिया जो कुछ भी एडमिट किया उसको करके देखा हुआ सारी चीज़ें। हमारी इन्वेस्टिगेशन का प्लान ये है कि आप बीएनपी भी कराते हो, प्रोकैल्सिटोनिन भी कराते हो, और 2-3 चीज़ें और भी हैं वो भी आप कराते हो, ठीक है। आपके पास सेप्टिसीमिया का कोई फीचर नहीं है, कोई फाइंडिंग्स नहीं है, मगर अगर आपका प्रोकैल्सिटोनिन लेवल पॉजिटिव आ रहा है तो आप उसको करने जाते हैं, तो कोर्ट ये कहता है कि उसमें क्लिनिकली ये नहीं है तो आप इसको कर रहे हैं तो आप तो बच जाते हैं, मगर ये एथिकली कितना सही है क्या नहीं है ये क्वेश्चन की बात है। और तीसरी चीज़, जो कॉर्पोरेट हॉस्पिटल से जितने भी रन कर रहे हैं सबके अपने अपने मेडिको लीगल सेल्स उनके मैनेजर करते हैं, तो हम लोग इसी के पीछे रखते हैं, मगर उनके आदमियों से जब बात करो तो वो कहते हैं साहब ऐसा है, कोर्ट में हजारों केस आते रहते हैं, इट्स ए वेरी डिफिकल्ट टू प्रूव मेडिकल नेग्लिजेंस। होता है 100 केस में से 2 केस होते हैं, मगर उसको आप पता चलता है कि 2 के हुए, मगर जितने के नहीं हुए उसके बारे में आपको पता नहीं। तो वो इतने कॉन्फिडेंट एनफ होते हैं कि साहब हम लोग तो किसी भी केस को मेडिकल नेग्लिजेंस प्रूव होने ही नहीं देंगे। ये कॉर्पोरेट हॉस्पिटल की चीज़ें हैं, उन लोग के खेल अलग हैं, उन लोग की डीलिंग अलग है, सारी चीज़ें अलग हैं, मगर उन चीज़ों को लेकर के हम अपनी सेफ्टी क्राइटेरिया नहीं बना सकते। सर आपने पहली बात बोली इन्वेस्टिगेशन की, हम लोग तो आपसे बहुत जूनियर हैं, हम लोग के पास कोई भी पैथोलॉजी की रिपोर्ट आती है उसके नीचे एक रिमार्क होता है काइंडली कोरिलेटेड क्लिनिकली। ऐसा भी होता है कि 5 साल के बच्चे के एक्सरे पे 50 साल लिखा हुआ आ जाता है, तो इट इज़ मी हु इज़ सीइंग, सो आई शुड रेज द क्वेश्चन। मैंने पहले ही कहा कि अगर शौक है तो डॉक्यूमेंट करिए। पेशेंट का प्रोकैल्सिटोनिन 5 आ गया, वो बता रहा है कि इसको सिस्टमिक इन्फेक्शन है हाई, उसको फीवर नहीं है, तो मैं लिखूँगा नो हिस्ट्री ऑफ ड्रग्स टेकिंग लाइक कॉजिंग इम्यूनोसप्रेशन, क्योंकि एक एंटिटी होती है कि अगर पेशेंट इम्यूनोसप्रेस्ड है तो फीवर ना आए, दैट ओनस कम्स ऑन मी टू राइट एंड डॉक्यूमेंट। पेशेंट का ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ है, वो सेप्सिसीमिया में उसका प्रोकैल्सिटोनिन नॉर्मल आ सकता है बिकॉज वो इम्यूनोसप्रेसेंट्स पे है, लेकिन पेशेंट की कंडीशन डिटोरेट करे तो हमको लिखना पड़ेगा कि पेशेंट इज ऑन इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स, so he is not running fever, maybe because not running fever, but the features of septicemia is there। एक 80 साल का आदमी है, वो हमारे पास सिर्फ ऐसे आ जाता है कि कुछ उसकी इंटरेस्ट नहीं है, कुछ कर नहीं रहा है, खा नहीं रहे हैं, पैथेटिक पड़े हुए हैं, तो हम सोचते हैं डिमेंशिया है, हो सकता है उसको हाइपोनेट्रीमिया हो केवल। तो आई हैव टू टेक दैट थिंग इनटू माय माइंड, हमको उसका सोडियम लेवल कराना पड़ेगा, और सोडियम लेवल कम आता है तो हमको देखना पड़ेगा यार इसका इंटेक बड़ा पुअर है, उस एज में एक प्रॉब्लम होती है। तो दीज थिंग्स आर डायनेमिक, दे कैन नॉट बी फिक्स्ड। सेकेंड थिंग जो आपने कहा रिकॉर्ड्स, बीइंग अ पीडियाट्रिशियन हम पोटेंशियल लायबिलिटी के हैं सबसे ज़्यादा समय के लिए। आपका मरीज 50 साल का है और उसकी मैक्सिमम ये 100 साल की है, उसको मोक्ष मिलना है तो 50 साल के लिए आप लायबल हो। मेरा मरीज तो आज पैदा हुआ, मैं 100 साल के लिए लायबल हूँ, तो उसके लिए भी कुछ रूल्स हैं। ओपीडी के रिकॉर्ड्स रखने चाहिए बट नोबडी कीप्स, उसको तभी संभव है जब हमारे प्रेस्क्रिप्शन इलेक्ट्रॉनिकली प्रोक्योर्ड हों, ताकि हमारे पास एक सिस्टम हो। यहाँ तो ओपीडी में हर मरीज की कार्बन कॉपी बनाए, तो उस रिकॉर्ड को हम रिट्रीव कैसे करेंगे, कहाँ स्टोर करेंगे, विल बी अ बिग इशू। लीगली ये कहा जाता है कि ओपीडी रिकॉर्ड भी आप रखिए, पॉसिबल नहीं है, बट इट इज़ वेरी लेस लाइकली कि ओपीडी में आप जाओ और ओपीडी का रिकॉर्ड पेशेंट खुद प्रोड्यूस करेगा कोर्ट में कि डॉक्टर राजन ने हमको ओपीडी में देखा, बोला ये है, ये नहीं था। उसके अलावा कोई डॉक्यूमेंट उसके पास भी नहीं, आपके पास भी नहीं है, तो उसके अलावा ना कोई डॉक्यूमेंट की नीड है ना अराइज होगी। लेकिन उस मरीज को पहले 5 लोगों ने देखा और आपके पर्चे के पीछे लिखा हुआ, तो वहाँ पे लिमिटेशन आती है। कोर्ट भी उससे कहता है, कोर्ट का एक सिंपल सा डिक्टम है कि अगर डॉक्टर भागवानी ने डॉक्टर राजन के ऊपर एलिगेशन लगाया है तो उस एलिगेशन को प्रूव करना मेरा काम है, और डॉक्टर राजन उसके रिबटल में कुछ कह रहे हैं तो उनका रिबटल उनके द्वारा प्रूव होना चाहिए। डॉक्टर राजन ने कहा कि भागवानी को डायबिटीज़ है तो रिपोर्ट वहाँ होनी चाहिए,
अगर उन्होंने ग्लूकोमीटर से अपनी ओपीडी में किया है तो उस पर लिखा होना चाहिए ग्लूकोमीटर ये रीडिंग है। हम ग्लूकोमीटर की सिंगल रीडिंग पे या एक बीपी पे हाइपरटेंसिव होने पे उसको नहीं मान सकते, हम उसको कंफर्म करें, डॉक्यूमेंट करें, ये भी मेरी रिक्वायरमेंट है। उसके बिना हम ट्रीटमेंट इनिशिएट नहीं करेंगे अनलेस अनटिल कोई इमरजेंसी हो। 200 का ब्लड शुगर होना कोई इमरजेंसी नहीं है। हम क्यों उसको तुरंत इंसुलिन पर रख लें, क्यों हम उसको OHA दे दें, नहीं देंगे। कहेंगे जाओ पैथोलॉजिस्ट करा के आओ, सामने मॉडर्न पैथोल लिए, आगे चरक पैथोल लिए, उधर सावित्री हॉस्पिटल है, करा के ले आओ, तब हम रिपोर्ट लिखेंगे, ऐसे नहीं लिखेंगे। बिकॉज आई हैव टू सेव माई सेल्फ, अलॉन्ग विद दैट आई हैव टू ट्रीट द पेशेंट। सेकेंड थिंग, आपने कहा एक तो इन्वेस्टिगेशन बोला, एक रिकॉर्ड्स बोला, एक होता है नेग्लिजेंस। की जो टाइमिंग है ना वो इंडोर वाले सर मेरे पास एक RTI की क्वेरी का रिप्लाई है, मैं देखता हूँ, होगा तो मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा अभी। उसमें लिखा है कब से कब तक करना चाहिए। एक ही 30 का रिकॉर्ड आपको लाइफ लॉन्ग रखना है, वो ये है कि पेशेंट कोर्ट में चला गया तो अब आप उसका रिकॉर्ड तब तक रखोगे जब तक कोर्ट इसको डिस्पोज न कर दे। बाकी किसी में भी लाइफ लॉन्ग नहीं है। और OPD के शायद 3 years हैं और उसके शायद 5 years हैं। मैं उस चेक करके अभी मैं ग्रुप में डाल दूंगा। RTI रिप्लाई है, NMC। अगर कोर्ट में जब केसेस जाते हैं, हाई में जाते हैं, सर वंस अ मैटर इज इन कोर्ट, वंस अ मैटर इज इन कोर्ट, तब फिर आप वो आप कभी भी ख़त्म नहीं कर सकते हैं। अगर मैटर का नेचर क्रिमिनल है तो वो उस क्रिमिनल को जो एक्यूज्ड है उसकी डेथ के साथ ख़त्म हो जाता है। यानी कि मेरे ऊपर अगर 302 का केस चल रहा है तो मेरी डेथ के साथ ख़त्म हो जाएगा, लेकिन सिविल लायबिलिटी का केस चलता रहता है। मैंने आपकी ज़मीन पे कब्जा कर लिया, मेरे जाने के बाद उस ज़मीन पे मेरे बच्चों का कब्जा है, आपका केस चल रहा है, वो मेरे बच्चों से चलता रहेगा। कोर्ट में डेथ सर्टिफिकेट लग जाएगा कि मैं जा चुका हूँ, तो उस पर कब्जा अब इनका है, तो ये लोग केस लड़ेंगे। तो क्रिमिनल और सिविल दोनों अलग अलग प्रोसीजर्स हैं। ये भी डिपेंड करता है कि आपका केस कहाँ गया। कंज्यूमर फोरम में गया जहाँ पे उसको सिर्फ कुछ पैसे का ग्रीवांस है, वो SSP के ऑफिस में गया, SSP ने CMO को भेजा, वहाँ उसका क्रिमिनल ग्रीवांस है। तो दोनों चीज़ें बिल्कुल अलग हैं। कंज्यूमर फोरम का केस भी एक्सपर्ट ओपिनियन के लिए CMO ऑफिस में जाएगा, लेकिन SSP FIR तब लिखेगा जब CMO ऑफिस ने उसको लिख के दे दिया कि यस दिस डॉक्टर हैज़ कमिटेड अ फॉल्ट। तो प्रोसीजरल चीज़ें बिल्कुल अलग हैं, उसकी बहुत अलग अलग डिटेल्स हैं, और वहाँ पर भी बहुत सी चीज़ें हैं जो हमको देखनी करनी चाहिए। ऐसे भी डॉक्टर हैं सर जिनका मेडिकल बोर्ड बना हुआ है, वो जाते ही नहीं हैं, वो अपने कलीग्स को डिफाई कर देते हैं, और उसका कलीग मजबूरी में लिख देता है वो नहीं आया। अब नहीं आने को कोर्ट ये परसीव करता है कि आप लापरवाह हो। गोरखपुर के ही मेडिकल बोर्ड का बता रहा हूँ सर, ये स्थिति है कि कई कई डॉक्टर जाते ही नहीं हैं, अबे यार जो होगा देखेंगे। तो नाउ दिस इज वंस दैट, भाई वो भी CMO भी आदमी है, उसकी भी चेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो आपका प्रेजेंस कैसे मार्क कर देगा बिना आपकी साइन के। तो अगर आप नहीं जा रहे हैं तो इसका मतलब आप केयरलेस हैं। दैट इज प्रूवन बाय द इन द कोर्ट ऑफ लॉ बाय द CMO रिपोर्ट कि भैया आए नहीं। तो कहीं कहीं पे हमको ये नहीं सोचना चाहिए कि वी आर अबव द लॉ, लॉ इज फॉर एवरीवन। तो अगर हमारा डॉक्यूमेंटेशन इन द इंटरेस्ट ऑफ पेशेंट है तो हम खुद को बचा पाते हैं। भगवान ये क्वेश्चन था कि जैसे आप कह रहे हैं कि इन्वेस्टिगेशंस रखने चाहिए, जैसे इंडोर पेशेंट्स आते हैं तो उनको तो वो अपन तो प्राइवेट प्रैक्टिशनर हैं, जैसे फातिमा वाले लोग नहीं देते हैं, जैसे मेडिकल वाले भी उसी में लिख देते हैं डिस्चार्ज कार्ड में, और इन्वेस्टिगेशन दे कीप देमसेल्व्स, बट वी कांट, हमको तो वो मांगते हैं कि भाई हमने जांच कराई, हमारी रिपोर्ट मैडम आई ऑलवेज से, आप एक हॉस्पिटल चलाते हो, आपने उस ज़मीन को ख़रीदा होगा और रजिस्ट्री आपके पास है, कॉपी गवर्नमेंट ऑफिस में है, आपकी रजिस्ट्री वापस हो गई, गायब हो गई, गिर गई, चोरी हो गई, आप गवर्नमेंट ऑफिस में एक एप्लीकेशन दोगे, आपको उसकी ट्रू कॉपी मिल जाती है। ठीक, पेशेंट मैं हूँ, आपके हॉस्पिटल में आया, कुछ जांचें आपने कराई, मैंने कराई, उसकी फ़ोटोकॉपी रख लो आप। ओरिजिनल हमेशा हमें पेशेंट को देना है, ओरिजिनल हमेशा हमें पेशेंट को देना है, और उससे लिखवा के लेना है कि सारी जाँच और प्रपत्र मैंने प्राप्त कर लिया है और तथ्यों को भली भांति समझ लिया है। हम कोई भी ओरिजिनल रिपोर्ट पेशेंट नहीं रखेंगे, क्यों? क्योंकि वो उसकी ओनरशिप में है, ये उसने खर्च किया है, हम क्यों रखेंगे? यस मैम। अल्ट्रासाउंड एक्सरे इन सब की फोटोकॉपी तो नहीं? मैडम वी नीड नॉट टू हैव अ इमेज ऑफ दैट। इफ यू आर कीपिंग इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस यू कैन डू सो ऑल्सो, नॉट एन इशू। बट अब क्या है कि
आपके पास CT, MRI, अल्ट्रासाउंड कुछ आता है तो डॉक्टर की रिपोर्ट के साथ आता है। ECG हम लोगों में से कितने लोग पढ़ पाएंगे? मैं पीडियाट्रिशियन हूँ, बहुत नहीं पढ़ सकता, ठीक है ना। पेशेंट टैकीकार्डिया कह रहा है तो मैंने उसको कार्डियोलॉजिस्ट के पास भेज दिया, फिजिशियन भेज दिया, तो मेरे पास उस ECG की रिपोर्ट आती है। EG हम लोगों में से कितने लोग पढ़ पाते हैं? तो न्यूरोफिजिशियन उसकी रिपोर्ट भेजता है, हमको उस रिपोर्ट का पन्ना कॉपी करके रखना है। EG का पूरा डॉक्यूमेंट हमको नहीं चाहिए। अगर डॉक्टर अंजू जैन ने EG को रिपोर्ट किया है, नीचे उनका नाम है, मैं उसकी कॉपी लेके अपनी केस शीट में रख लूँगा। OPD का पर्चा है, मेरे स्टाफ को पता है कि अगर मैं डॉक्टर के पास अंदर भेज दिया तो फिर वापस आ जाएगा। वो EG की रिपोर्ट चढ़ाएगा, डेट चढ़ाएगा, लिखेगा उसमें कि कहाँ से हुआ है, उसका नंबर लिखेगा, EG की रिपोर्ट का नंबर क्या है, बिना उसके मैं आगे नहीं बढ़ता हूँ। ये सब काम डॉक्टर को बचाते हैं और डॉक्टर का टाइम नहीं लगता है। आपके बाहर जो स्टाफ बैठा है उसको आप ट्रेन कर दीजिए, एक स्टाफ एक्स्ट्रा रख लीजिए, लेकिन ये आप नहीं करेंगे तो भाई वो आपका फॉल है। आप पढ़े लिखे हो, ओनस लाइज ऑन यू, ओनस लाइज ऑन यू। आपने कहा कि OPD का 3 साल का रिकॉर्ड रखना है, तो जो लोग OPD का सबमिशन करते हैं वो पर्चा कैसे 3 साल रखेंगे? सर आई फुली एग्री विद यू। मैंने कहा ये तभी संभव है जब उसका इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस हमारे पास हो, हमारा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम ऑफ गिविंग अ प्रिस्क्रिप्शन हो। फिजिकली हम नहीं रख सकते हैं, कोई नहीं रखता है, मैं भी नहीं रखता हूँ, लेकिन उसका एक साइड में दूसरा चीज़ भी है। मैंने आपको देखा या आपने मुझको कंसल्टेशन दिया, मैं आपके कंसल्टेशन से असंतुष्ट हूँ, मैं कहाँ जाऊँगा? मैं कोर्ट में जाऊँगा, लेट इट बी कंज्यूमर, लेट इट बी क्रिमिनल, लेट इट बी एनीवेयर, तो मैं उस डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस करूँगा ना, वो अपने आप में एक रिकॉर्ड होता है, वो रिकॉर्ड। लेकिन पेशेंट की केस शीट आप रखते हो, आपने उसको कब क्या दवा दी, उसके वाइटल्स क्या थे, आपके पास है। पेशेंट को आप डिस्चार्ज देते हो, इंडोर वाला तो फाइल आपका है। सर OPD का डॉक्यूमेंट तो मान लीजिए आप मेरे उस OPD के पेशेंट से एक ग्रीवांस रखे हुए हो, तो आप उस डॉक्यूमेंट को लेके ही तो कंप्लेन करोगे ना। और अगर मेरे OPD के पर्चे पे लिखा हुआ है पीछे कि पेशेंट को हमसे पहले डॉक्टर शैलेंद्र ने देखा, डॉक्टर घनश्याम ने देखा, डॉक्टर RK पाल ने देखा, डॉक्टर PC शाही ने देखा, अब उस कोर्ट ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के बिना आगे नहीं बढ़ता है। तो आप उस पर्चे को देखेंगे, कोर्ट में मांग सकते हैं कि सर कैन आई सी माई, ये PMS के इतने लोग मेडिको लीगल केसेस को करते हैं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट देते हैं, 10 साल बाद ही एविडेंस देने जा रहे हैं, तो उनको पास राइट होता है कि सर मैं अपनी रिपोर्ट को देख लूँ एक बार, मैंने 10 साल पहले लिखी है। तो आपका OPD का पेपर आपको मिलेगा, आप उसको पलट के देखिए, साहब इन्होंने हमको नहीं 5 डॉक्टर को और दिखाया है, आस्क हिम फॉर द फुल डॉक्यूमेंट्स, कोर्ट विल बोलेगा उसको ले आओ, प्रोड्यूस करो। तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, हम नहीं रख सकते, मैं भी नहीं रख पाता हूँ, कैसे रखेंगे? यस, आप बिना डॉक्यूमेंट के आप कोर्ट में जाओगे कैसे? अब मैं कह दूं कि नहीं डॉक्टर शैलेंद्र कुमार ने मेरा गलत इलाज किया, कोर्ट कहेगा कैसे कह रहे हो? तो मैं कहूँगा मेरे पास कोई पर्चा नहीं है, तो आपने कब उनको दिखाया? मैनी टाइम्स क्लिनिक में आपने एक मरीज को देखा, साहब इसके छोटे भाई को भी बुखार या खांसी जो भी, तो आप एक दवा लिख दीजिए। उस डॉक्यूमेंट अगर आपने लिख दिया, वैसे तो यूजुअली वी डोंट, बट लेकिन लिख दिया आपने, तो उस डॉक्यूमेंट का या कोई जानने वाला आया कि साहब इसकी दवा ये है, तो आप किसी स्लिप पे आपने लिख दिया, व्हाट इज द लीगल वैलिडिटी ऑफ दैट डॉक्यूमेंट? सर वेरी गुड क्वेश्चन, एंड फ्रीक्वेंटली वी एनकाउंटर इट, स्पेशली इन ट्विंस, जिनके जुड़वा बच्चे होते हैं तो हम लोग देखते ही हैं। मैं तो कहता हूँ यार, शादी भी 2 से करोगे, स्कूल भी 2 को पढ़ाओगे, मेरी पेट पे लात क्यों मार रहे हो? पहली बात। दूसरी बात, आई हैव नॉट टू बी फ्रेंडली विथ हिम, मैं कभी उसको लिख के नहीं देता हूँ बुखार है मेरे स्टोर पे चले जाओ, पैरासीटामोल एक दे देगा, मैं लिख के नहीं देता, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंड ऑफ ऑल, वन पेशेंट कहता है डॉक्टर साहब 2 दिन पहले आपको दिखाए थे, बच्चों को ये प्रॉब्लम है, दवा लिख दो, ये भी होता है। पेशेंट मेरे पास नहीं आया, वो कहता है केवल फीवर है। अब डॉक्टर को भी लगता है मैं कितनी बार उसको बुलाऊंगा, फरिंदा में उसका घर है, आया है, तो मैं उस पर छोटा सा रिमार्क डालता हूँ, प्रॉक्सी विजिट। हाँ, पेशेंट नॉट ब्रॉट। तो अब मैं उसको पेशेंट नॉट ब्रॉट में उसको मैं एंटी कन्वेलेंट नहीं लिखने जा रहा हूँ, मैं उसको बुखार की दवा दे दूंगा, यानी वो दवा दूंगा जो OTC पे अवेलेबल है। नाउ ही कैन नॉट से कि भाई ये इनकी दवा से ये हो गया, भाई पैरासीटामोल तो OTC में अवेलेबल है, हमने उसको वेलप्रोइक एसिड लिखा तो समस्या है, आपने बिना सीधा डॉक्यूमेंट किए उसको कैसे दवा दे दी? तो आपके पास तरीके हैं अपने डॉक्यूमेंट को ठीक रखने के, उस तरीके को हम नहीं इस्तेमाल में ले आते हैं, इसीलिए प्रॉब्लम आती है।
डॉक्टर राजू, आपका जो किसान है स्लिप पे लिख आपने करके slip देने लिख का दिया, है, हाँ। स्लिप पे लिख के देने का है, उसमें इशू ये होता है कि अगर सब कुछ ठीक है तो ठीक है, हाँ। मगर अगर वो फंसा हाँ, तो वो ठीक स्लिप में पे तो। लिखने पे भी आप फंसेंगे। फंसेंगे। फ्री कंसल्टेशन एनी डॉक्यूमेंट कोर्ट हैज़ क्लियरली सेड, आप ईमेल पे, व्हाट्सएप पे, टेक्स्ट मैसेज पे कोई भी मेडिसिन प्रेस्क्राइब नहीं करोगे विदाउट सीइंग अ पेशेंट. इफ यू आर प्रेस्क्राइबिंग इट मीन्स यू डू नॉट नो दैट यू आर अ डॉक्टर. Then what about teleconsultation? सर, टेली कंसल्टेशन के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की टेली कंसल्टेशन गाइडलाइंस हैं. तो अगर मैं आपका टेली कंसल्टेशन करा, आई विल इस्टेब्लिश योर आइडेंटिटी. यस, यू आर डॉक्टर आर के पांडे, आई विल टेक योर आधार कार्ड. आई विल टेक योर आधार कार्ड. मैं उस आधार का नंबर लिखूंगा, आपका एज लिखूंगा, आपका एड्रेस लिखूंगा. आपके जो टेली कंसल्टेशन के प्लेटफॉर्म्स हैं वो आपको अवेलेबिलिटी देते हैं कि उस टेली कंसल्टेशन को आप रिकॉर्ड करें. टेली कंसल्टेशन इज अ डबल एज स्वॉर्ड. इट टेक्स मोर ऑफ योर टाइम, लेस ऑफ इंफॉर्मेशन, एंड इट इज मोर वल्नरेबल टू मेडिको लीगल इश्यूज बिकॉज योर ऑल डॉक्यूमेंटेशन इज इन एन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म. सो इफ आपने उसको कुछ एडवाइस कर दिया और आपको उसको बुलाना चाहिए था, तो आपको बोलना पड़ेगा योर ट्रीटमेंट इज नॉट कैनॉट बी डन ऑन द बेसिस ऑफ द टेलीकंसल्टेशन. यू हैव टू कम टू द क्लिनिक. So you have to be very judicious while doing teleconsultation. It's a double-edged sword for doctor and patient both. हमसे तो मरीज कहता है डॉक्टर साहब दवा लिख दो, मैं उसको कहता हूँ यार इस बच्चे को ले आए हो, मैं इसकी दवा तुम्हें बिना मिले बिना देखे लिख देता तो लेते. बोलता नहीं तो हम कहते तो वो गलती हमसे क्यों करा रहे हो. जो आपने कहा ना कि कहता है लिख के दे दो, कहता है इस मरीज की फीस दिए हो, दिखाए हो, उस मरीज को तुमने हमको दिखाया भी नहीं, हमसे दवा मांग रहे हो, तो इस मरीज की भी मैं बिना देखे दवा लिख दूँ, ले जाओगे. बोला नहीं. जैसे अक्सर वैसे भी पूछ लेते हैं कि डॉक्टर साहब कि हमारा छोटा बच्चा 1 साल का है, तो क्या ये दवा उसको भी दे दे? हाँ। जैसे 3 साल का है. I simply say you can give, I will not comment. हाँ, आप अपने He is your child, you मैं कहती हूँ can. कि तुम्हारी इच्छा है. He is your child, you can take risk. He is your child, you can take risk. He is my patient, I cannot take risk. पेपर पे कुछ नहीं. एक ये जवाब उसको ये समझा देता है कि आपका प्रोफेशनल एंटायर फिक्स्ड है, आपके प्रिंसिपल्स हैं, तो वो दोबारा आपसे अप्रोच नहीं करेगा. आप देना शुरू कर दोगे तो अगली बार अपनी माँ, बहन, बेटी, बुआ, चाचा, ताऊ, नाना, मामी सबको ले आएगा. क्योंकि उसका एम, देखिए हमारा हेल्थ इज आवर लास्ट कंपल्शन, ठीक है ना, तो उसका एम अपना पैसा बचाना है. जब कोई मरीज मर भी जाता है तो उसको पता होता है कि मेरा मरीज बीमार था, डॉक्टर ने इलाज किया, इतना कुछ हुआ तब मर गया. लेकिन वो कहता है थोड़ा है कि आपने बहुत मेहनत की, कभी कहता है? वो ये कहता है कि आपने लापरवाही में उसको मार दिया. तो यू शुड हैव अ डॉक्यूमेंटेड एविडेंस कि आप लापरवाह नहीं हो. तो अगर आप उसको बोलोगे कि भाई हम तुम्हारे मदद कर रहे हैं, तो देखिए मुफ्त की मदद और मुफ्त की सलाह हमेशा मारती है, तो उसमें तो न पड़ी अच्छा है. अगर कोई पेशेंट गॉड डेड है तो हम लोग को क्या मतलब उसको सिविल हॉस्पिटल में भेज देना चाहिए? सर, सबसे बड़ी समस्या क्या आती है कि वो मेरा अपना जानने वाला है. क्योंकि सबसे पहले घर में डेथ हो गई वो आपको बुला लेते हैं, ठीक है ना. सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है. अननोन आ गया, मैंने मना कर दिया. सबसे बड़ी प्रॉब्लम नोन की आती है. तो अगर आप उससे ये कहोगे कि यार मैं नहीं दूंगा, तो आपके संबंध खराब. उसके तरीके हैं, यार तुम सर्टिफिकेट मांग रहे हो, उसको कहीं भी लगाओगे मेरा सर्टिफिकेट चलेगा नहीं, प्रॉब्लम होगी. तो बेहतर है तुम नगर निगम से बनाओ.